That's fine. We've got to see if you can see something. How Siraj is delivering support to select stuff. I think my point will be made. रूपा मैडम सबको म्यूट कर दो. लेट वी स्टार्ट. आज अपना महामंत्री नहीं है क्या? महामंत्री अहमदाबाद में. पुरुषोत्तम जी को वहीं से तो भेजा उन्होंने. क्या बात है. वो अहमदाबाद गया था लेने को, बट फिर वो उधर ही रुक गया. बोलते तो सेवा का मौका मिलता. बात कर लो, उधर ही है वो. जी सर, कर लेता हूं. अभी मीटिंग खत्म. Yes. Now let we start. Generally, Thane branch is having very disciplined way of doing seminar. We generally start dot by 5:1 to 5:3. Not there is not a single seminar where we have delayed by more than 5 minutes. So let we start. Respected members, seniors in profession, and my colleague in Thane branch, I, on behalf of Thane branch, welcome you all in this seminar. We team Thane branch are extremely delighted to have you all in this seminar. I recognize presence of RCM, Sri Kamlesh Sabu. Today we have seminar on basics of professional opportunities in intellectual properties rights. This is one of the area of practice where very few chartered accountants are practicing. Our aim is to provide guidance to our members to gain knowledge of newer fields and add probably one more vertical in their area of practice. And those who are into job to gain basic knowledge so that it helps them in their career. To deal with the subject, we have very prominent and dynamic CA Purushottam Khandelwalji. Formal introduction will be given by our very own CA Nilesh Thakkarji from short while from now. Respected members, today's seminar will be interactive. If you have any question to CA Khandelwalji, please feel free to ask, but preferably through chat box only, or you can raise your hand. One more thing, and which is most important thing, which I repeat every time in seminar, that your Zoom login name should be your membership number followed by your name. Please do not blame us if we cannot upload your CP credit due to non-availability of membership number. Few announcements. We are planning our Vocal for Local series, speaker series 9 next week. Details will be shared with you early next week. You can block your day and time. Now I request CA Nilesh Thakkar formally introduce today's speaker. Over to you, Nilesh. Thank you, sir. Good evening, all participants, my seniors and my colleagues, for joining this seminar. First of all, I would like to thankful heartily to CA Shiv Bhagwan Asawasa for giving me opportunity to introduce today's speaker. It's great pleasure, my pleasure to introduce today's speaker, CA Purushottam Khandelwal sir, who is going to tell us about today's topic on professional opportunities in intellectual property rights, which is utmost important to all of us in today's competitive world. CA Purushottam Khandelwal sir is a fellow member of ICAI, and he is also a law graduate from Gujarat University, Ahmedabad. He is also a senior partner of Purushottam Khandelwal and Company, Ahmedabad. He is having 25 years post-qualification experience in the field of audit, tax, direct tax, and intellectual property rights area. Few key positions held at ICAI by Khandelwal sir, which are follow. Secretary of WIRC in the year 1819, member of WIRC Council for the term 2016 to 2019, chairman of Ahmedabad branch of WIRC in the year 1314, secretary of Ahmedabad branch of WIRC in the year 1112,
chairman of Ahmedabad branch of Vikasa in the year 1780. CA Khandelwal is having enormous achievements which few are follows. As the chairman of Ahmedabad branch has been awarded as the best branch of the ICAI for the first time in the history. Also awarded a best branch of WIRC and branch of Vikasa. As the secretary of WIRC awarded as the best region of ICAI. As the chairman of Ahmedabad branch of Vikasa, Ahmedabad branch of Vikasa awarded a best students association of ICAI as well as WIRC. He was the president of Rotary Club Ahmedabad Airport in the year 1415. Currently, he is serving as an assistant governor for Rotary District 3054. Now, I would like to invite and hand over this webinar to today's speaker, CA Purushottam Khandelwal sir, to share his experience and knowledge on today's interesting topic. Over to you, Khandelwal sir. Thank you. Good evening. Respected Chairman of the Thane branch, Sri Bhagwanji Ashawa, Vice Chairman in absentia, Swapnil ji, Treasurer Suraj ji, Nileji Ashawa, my dear friend, council colleague, Kamlesh Sabu, whom with I got an opportunity to work in the WRC, my younger brother, respected member of the Thane branch, Chetan ji, Kishore ji, Sanjay bhai, jo screen pe dikh rahe mere ko, baki malum, and all the respected member who is on the Zoom to hear me. I thanks to Sri Bhagwan Ashawa ji for giving me an opportunity to share my thought on intellectual property right. This is a new area of practice. You all know, day in and day out, the area of practice goes down. The tax audit ceiling goes to 10 crore. GST audit is now no more. Before 2 or 3 days, the Bar Council of India has freed their members to do any other work, which is still, we are bounded by the code of ethics and code of conduct. So we cannot do any other works. Just the Bar Council of the advocates has freed them to do any other works. First of all, I will explain what is intellectual property rights, right? कैसे acquire किए जाते हैं, कैसे sale किए जाते हैं, और at the end of my session, you will be able to file the applications of intellectual property right, and you can able to assign how to assign the rights. You will learn today. I will give you the history of the brands. Just a brand finance and independent branch valuation committee has took a sample of the corporates and give them according to their rank, according to their brand value. So the Tata Group is number 1, having a brand value of $19.6 billion. Tata include TCS, Tata Motor, and Tata Steel. Number 1 brand of the India. The second brand of India is the Life Insurance Corporation of India, having $7.3 billion. The value of LIC is $7.3 billion over a 6 decade of period. The third number is Infosys, having $6.5 million, and fourth number is State Bank of India, having $5.97 billion. अगर मैं combinedly बात करूं, अगर we combined LIC and Infosys both together, still the value of Tata Group is much higher than this group. The brand valuation, brand कैसे create होता है? ये खाली TA लिखने से उसकी ब्रांड की वैल्यू नहीं है. ब्रांड वैल्यू कब बनती है? जब आप कुछ कहते हैं, करते हैं और उसमें सामंजस्य है. जैसे असावा साहब ने बोला कि थाने ब्रांच इज डेडिकेटेड टू स्टार्ट प्रोग्राम ऑन द टाइम. एक प्रोग्राम टाइम पे किया, दूसरा टाइम पे किया, तीसरा टाइम पे किया. So now it is a tradition that if we miss the program, we will miss. But the branch will start program on the time. So Tata Group, what is committed to the public or a shareholder or a stakeholder, they still adhere to their commitment. So the value of Tata Group is always high. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इंडिया में एयरलाइंस लाने वाली पहली कंपनी टाटा थी, जो जमशेदजी टाटा कराची से प्लेन को उड़ा के दिल्ली लेके आए थे. बट ड्यूरिंग दी ग्लोबलाइजेशन अगेन कम्स टू दी, पहले उसको क्या किया था कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में उसको नेशनलाइज कर दिया था और सब उनसे ले लिए थे, और वापस पीरियड चेंज हुआ और वापस जैसा जैसा कंपनियों का था उनको वापस दे दिया गया. तो एक टाटा ग्रुप ने देश के लिए कहा है, वो किया है.
इसीलिए उनके ब्रांड की वैल्यू है। किसी को भी टाटा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना तो ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरी कैपिटल चली जाएगी। काला काला क्यों निकला प्रिंट आउट? ये सर इधर okay. So Tata Group is still high moral value of the corporate ethics. अभी ये जो अपने लेके आ रहे हैं CSR एक्टिविटीज, लेकिन टाटा ग्रुप पहले से CSR बाय हार्ट नहीं करे। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल देखो, या टाटा ग्रुप ने बहुत सारी स्कूल्स खोली है, या जिस गांव में टाटा के प्लांट है वहां के बच्चों के, वहां के गांव वालों को वो पहले से ही हेल्प करते थे। अगर मैं बात करूं आपको फोर्सफुली मर्जर की, जो अभी भी आपको देखने को मिलेगा, अगर टेलीकॉम सेक्टर में बात करें तो वोडाफोन and Idea Cellular comes together to just compete with the Reliance Jio। और अभी कुछ दिन पहले कुमार मंगलम बिरला जी ने बोला था कि अगर सरकार अगर ये हमारा ड्यूज कम नहीं करेगा तो सरकार को हम ये शेयर पूरा का पूरा ऐसे इसी वैल्यू पे देने के लिए तैयार है। तो अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो भी साथ में आना जरूरी है। अगर दूसरी बात करें तो टाटा एक्वायर अ ब्रांड ऑफ जगुआर लैंड रोवर। जो जगुआर लैंड रोवर थी फोर्ड मोटर की, वो दैट वाज अ इंकरिंग लॉसेस and they approach it to the Ratan Tata that if you purchase our brands, we are ready to sell the brand, and the Tata acquired this brand after payment of $2.3 billion. And what a great management of Tata Group, after paying a $2.3 billion to acquiring this right on the Land Jaguar Rover, still they are incurring profit on the sale of Land Jaguar Rover। वैसे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें, तो वॉलमार्ट एक्वायर्ड फ्लिपकार्ट टू जस्ट कम्पीट विद अमेजॉन। अमेजॉन जाइंट कंपनी है और उसको कम्पीट करने के लिए वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया आफ्टर पेमेंट ऑफ $16 बिलियन। जोमेटो एक्वायर उबेर इट। और दूसरे दो बड़े ग्रुप की मैं बात करता हूँ, ये खाली 5 मिनट आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कितनी वैल्यू इन्वॉल्व है और हम लोग क्यों इससे बाहर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। साउथ कोरिया की लोटे कन्फेक्शनरी कंपनी है। Everybody knows the Indians and the Gujaratis are very fond of eating ice cream in the rainy season also, or in the cold season. The South Korea Lotte Confectionery paid 120 crore rupees to Hamburg Group just to acquire a brand of the Hamburg Group. उसमें अगर आप देखें तो out of 120 crore, 800 crore payments toward the acquiring of the intellectual property right to just enter into Indian ice cream market. Another is an example of the Ban India Limited, which is the Rajkot based company, और उसकी कंपनी की राजकोट जो बैन इंडिया लिमिटेड है उसके पास 500 से ज्यादा ट्रेडमार्क है। उसमें से एक ट्रेडमार्क था सेसा ऑयल। जस्ट टू सेपरेट दिस ब्रांड फ्रॉम द किटी ऑफ द 500 ट्रेडमार्क ऑफ सेसा, ये बैन इंडिया, the PE North invested 1,250 crore rupees to just acquire 74% controlling stake in the company, and they create a new company called Sesa Care Private Limited. So आपने देखा कि इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और अगर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्यों है नहीं इसमें? हमारा रोल सर्टेनली है, वी हैव टू क्रिएट अ प्लेस इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट्स in the era of globalization, in the era of nationalizations. We are a very good opportunity in the intellectual property right. Now I will, what is a intellectual property? Intellectual property है क्या, और कौन कौन से एक्ट से इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है? इंडिया में किस किस तरह के लॉ हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ये कुछ भी नया थॉट्स, नया विचार, नया नाम जो आदमी के दिमाग की उपज है, जिसको वो चाहता है कि इस नाम का कोई कॉपी ना करें, मेरी इन्वेंशन को कोई कॉपी ना करें, मेरे जो डिजाइन बनाई है उसकी कॉपी ना करें। जो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, एक्सक्लूसिवली ह्यूमन माइंड, किसी की कॉपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है तो उसके ह्यूमन माइंड के जो भी क्रिएटिविटीज है उसको जो रजिस्टर करने के लिए जो भी इंडिया में लॉ है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से इंटेंजिबल एसेट, फिजिकली वी कांट सी इट, लेकिन वी कांट डिनाई द एक्सिस्टेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो हवा को आप और हम देख सकते हैं क्या? आप और हम कोई एयर को देख नहीं सकता, लेकिन वी कैन नॉट डिनाई द एक्सिस्टेंस ऑफ एयर, और विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव इन द वर्ल्ड। तो जिस तरह से अगर आप हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो इन द कॉमर्शियल मार्केट आप अपने ब्रांड नाम और उसकी वैल्यू के बगैर आप न तो बिजनेस कर सकते हैं, न अपनी पहचान बना सकते हैं। तो जितनी इंपोर्टेंस एयर के लिए, अपने मानवीय जीवन के लिए, उतनी इंपोर्टेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वैल्यू कॉमर्शियल वर्ल्ड के लिए। तो इंडिया में बड़ी बात करें तो इंडिया में पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है,
ट्रेडमार्क है, जियो है और डिजाइन है। तो बड़ी बात करो तो 4 बड़े एक्ट है जो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 1 है पेटेंट। पेटेंट एक्ट 1970 इन फोर्स। ये फोर्स कोई भी लॉ क्यों बनता है? लॉ इसलिए बनता है कि जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो जिन्होंने इन्वेंशन किया तो उनके इन्वेंशन की कोई कॉपी ना करे। तो इन्वेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ बनता है। तो बात करें इंटेलेक्चुअल पेटेंट, तो पेटेंट एक्ट 1970 इन फोर्स बहुत पहले से लेके आए थे। इसका कारण क्या था कि कोई भी इन्वेंशन अगर करता है और उसके इन्वेंशन की कोई कॉपी दूसरे लोग करते हैं तो इन्वेंटर विल बी नॉट मोटिवेटेड टू डू द फर्दर जो अपने फर्दर जो करना आविष्कार वो नहीं करेंगे, इन्वेंशन नहीं करेंगे। अगर कोई भी देश का अगर इन्वेंशन रुक जाता है तो उसकी देश की प्रगति रुक जाती है। जैसे आप और हम बोलते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसका मैं लेटेस्ट उदाहरण दूं तो आप और हम जूम पे क्यों बात कर रहे हैं? अगर कोरोना नहीं होता तो शायद हम और जूम पे बात नहीं करते। मैं आज थाने ब्रांच में होता और वहां से आपके साथ बात कर रहा होता, फिजिकली इंटरेक्शन। लेकिन ह्यूमन माइंड कितना जल्दी अडॉप्ट कर देते हैं। हमने इसको इतना जल्दी अडॉप्ट कर दिया कि देखो आज कितना इजी लगता है। आप अपनी ऑफिस में बैठे, मैं मेरी ऑफिस में बैठा हूँ, एट डॉट 5 बजे चालू किया, 7 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, 7 बजे आप लोग भी फ्री हो जाएंगे। तो ये जो जरूरत थी उसके हिसाब से इसके ऊपर हम जूम के प्लेटफॉर्म पे आए। दूसरा मैं आपको उदाहरण दूं तो राजा महाराजाओं के पहले के जो मेल होते थे, जो पैलेस होते थे, वो कहाँ पे बनते थे? हिल के ऊपर, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पे बनाते थे ताकि नीचे से कोई आक्रमण करें तो वो अपना आपका बचाव कर सके। ये थ्योरी थी। बड़े बड़े राजमहल आप राजस्थान जाएं या मैसूर जाए या महाराष्ट्र में जाए तो सब राजाओं के महल ऊपर बने हुए थे और वहां से किला ऊपर होता था और नीचे प्रजा रहती थी। लेकिन क्या अभी पॉसिबल है कि किला कोई भी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस पहाड़ों पे बनाई? जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है। अगर कुछ अटैक होता है, बॉम्ब अटैक, तो सबसे पहले ऊपर होगा। तो अभी लोग उसकी जगह बंकर में बनाना अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो कहां से चले थे? ऊपर से चले थे और बंकर में घुस के। ये जरूरत है, ये समय की देन है, ये आवश्यकता की जरूरत थी, उसके हिसाब से आपने चेंज और अडॉप्ट कर लिए। तो जो इंडिया में इन्वेंशन के प्रोटेक्ट को राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटेंट एक्ट 1970 इन फोर्स, नंबर 1। अनदर रीजन कॉपीराइट। कॉपीराइट मींस आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई म्यूजिक बनाया, आपने कोई फिल्म की स्टोरी लिखी, फिल्म बनाई, आपके पास पेंटिंग्स है, ये सब है, इसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिलेगा। और इसको अगर लीगली प्रोटेक्शन है तो कॉपीराइट एक्ट 1957 से है। थर्ड है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आपके जो भी ब्रांड है उस ब्रांड्स का कोई नाम डुप्लीकेट ना करे। आपको राइट कैसे इशू करेंगे, राइट का प्रोटेक्शन क्या होगा, राइट्स का जो ये जो ट्रेडमार्क होल्डर है उसके लीगल राइट्स क्या है, वो इस एक्ट से मिलता है। ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, कैसे किसी को बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसा इसका वायोलेशन होता है, इंफ्रिंजमेंट कैसे होता है, ये सब के लिए आपको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में प्रोटेक्शन है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये थोड़ा आपके लिए नया होगा। आप सबने शैंपेन का नाम सुना होगा, बॉम्बे में है तो शैंपेन ड्रिंक्स जो यूज होता है सेलिब्रेशन में। लेकिन अगर आप देखने जाए तो शैंपेन फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और जहां जो ड्रिंक्स बनती है उसको शैंपेन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी की भौगोलिक जगह के कारण वो वस्तु वहां की फेमस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ इंडिया में है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है। अगर मैं बताऊं तो पाटन के पटोले, आगरा के पेठे, कांजीवरम की साड़ियां, दार्जिलिंग की चाय, ढाका की मलमल, ये सब पर्टिकुलर रतलामी सेव, बीकानेरी भुजिया। अभी रतलामी सेव रतलाम में बनती है तो ही उसका टेस्ट है। अगर ये रतलामी सेव आप थाने में बैठ के बनाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और रतलामी सेव रतलाम के उस पानी और हवा के जो भेज के कारण जो बनता है वो टेस्ट नहीं आता। तो लोग पर्टिकुलर जगह को की वजह से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे आप और हम लोग सब घूमने के शौकीन है और जब घूमने जाते हैं तो अपने क्या बोलते हैं कि यहाँ का लोकल क्या चीज फेमस है वो हमको खरीदना है। हमारे वहां सब मिलता है लेकिन यहाँ का लोकल क्या है। गोवा में जाते तो फैनी का बोलते हैं, मतलब वो जो पर्टिकुलर चीज एरिया की फेमस है ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, तो वहां के जो लोगों को जो राइट्स मिलते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, वहां के प्रोडक्ट को वहां के लोग ही बना के बेचे, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिया में राइट है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। एंड अनदर रीजन डिजाइन एक्ट 2000। अब डिजाइन, कार की डिजाइन, घड़ी की डिजाइन, मोबाइल की डिजाइन, एयरप्लेन की डिजाइन, कोई पेन, घड़ी, टेबल, कुर्सी, बोतल,
परफ्यूम की बोतलें देखिए आपने, अलग अलग डिजाइन में आती है, उस डिजाइन की कोई कॉपी नहीं कर सकते आप। कोई भी प्रोडक्ट की, कपड़े की डिजाइन अगर मास्टर ने डिजाइन बनाई है तो दूसरा कोई प्रोसेस हाउस उसकी डिजाइन की कॉपी नहीं कर सकता। ये सब जो डिजाइन होल्डर्स के राइट हैं वो डिजाइन एक्ट 2000 से मिलते हैं अपने को, लीगल हैं। अब इंडिया में ये ऑफिसेस कहाँ है और अपनी अपॉर्चुनिटीज कैसे बनती है मैं बताऊं। अगर उनके ऑफिसेस कहाँ है किस तरह से बताओ, तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एक ही ऑफिस है, उसका हेड क्वार्टर है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट, ये नागपुर में है। और इंडिया में पेटेंट की 4 महानगरों में ऑफिस है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई। डिजाइन की ऑफिस कोलकाता में है, ट्रेडमार्क की ऑफिस मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के अलावा गुजरात में एक अहमदाबाद में है। तो टोटल 5 ऑफिसेज हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की ऑफिस चेन्नई में है, बराबर, और कॉपीराइट की दिल्ली में है। आपको सिर्फ 2 ही वेबसाइट याद रखती है। आपने जनरली प्रैक्टिस करते हैं तो इनकम टैक्स अलग, डीजीएफटी की वेबसाइट अलग, जीएसटी की अलग वेबसाइट, एमएसएमई की वेबसाइट अलग, अलग अलग लो अलग अलग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही वेबसाइट ध्यान रखनी है। एक है ipindia.nic.in, अगेन मैं रिपीट करता हूँ ipindia.nic.in, और दूसरी है कॉपीराइट इंडिया। ipindia.nic से सब एप्लीकेशन एक ही जगह से होती है, उसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, चारों की एप्लीकेशन आपको वहां से जो राइट एक्वायर करने हैं वो इसी वेबसाइट के थ्रू होते हैं। और दूसरा है कॉपीराइट, कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट ऑफिस दिल्ली में और उसकी वेबसाइट अलग है। तो आपको सिर्फ 2 ही वेबसाइट ध्यान रखना है। अगर आपको इसमें प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो 2 ही वेबसाइट करना है, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, बराबर। अपनी अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है, मैं पहले अपॉर्चुनिटी आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको टेक्निकली कैसे एप्लीकेशन की जाती है। आप एंड ऑफ द सेशन आप यू विल बी एबल टू फाइल एप्लीकेशन वेरी क्विकली, बराबर। अगर मैं ये आपको व्हाट इज द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आई विल एग्जांपल बाय वन स्टोरी। फॉरेस्ट में ऊंटों का कारवा एक जगह से दूसरे जगह नॉर्मली मूवमेंट होता है। वंस अपॉन ए टाइम एक चरवा होता है, वो अपने 100 ऊंट लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है और रात को रात्रि रोकाण करता है। लेकिन क्या हो जाता है कि उसके साथ में 100 ऊंट है लेकिन उसकी रोप है वो 95 है, 5 रोप हो जाती है। वो चलते चलते जब रात को सराय पे पहुंचता है तो टेंशन में आ जाता है। उसको लगता है कि आज मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में 95 रोप है और 100 ऊंट है, तो 5 ऊंट कहीं उठ के रात को चले न जाए, खो न जाए, तो मैं उनको रखवाला करने के लिए पूरी रात जागूंगा। लेकिन यही जब प्रॉब्लम्स वो सराय के मालिक के पास जाके लेके जाता है तो उनको ये बताता है कि मेरे पास में 5 रस्सी नहीं है, तो क्या मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा? तो उसने बोला ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से 95 ऊंट को बांधते हैं गले में हाथ डाल के, रस्सी डाल के, ऐसा ही आप एग्जाम्पल ऐसा ही बिहेवियर उन 5 ऊंटों के साथ भी करिए कि उनको लगना चाहिए कि आपको खूंटी से बांध दिया है, गले में हाथ डाला, डोरी लगाई, डोरी हटा दी, वो भी बैठ जाए, वो भी। और वास्तव में हुआ ही यही कि वो 5 ऊंट थे, वो भी बैठ गए। पूरी रात सुबह हो जाती है, सब ऊंटों की रस्सी खोल दी जाती है 95 की, वो लोग चलने लगते हैं। लेकिन जो 5 ऊंट जिनको हमने कभी बांधा ही नहीं था वो वहां बैठे रहते। कभी उसने सोचा ही नहीं था चरवाना की उनको भी खोलने की जरूरत है। वो अगेन सरवा के मालिक के पास जाता है, सराय के मालिक के पास में, और कहता है कि सर हमारे 5 ऊंट तो उठ ही नहीं रहे, उनका क्या करना? तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से आपने खोलने बांधने का एक्शन किया था उसे खोलने का भी एक्शन करो तो वो अपने आप चलेंगे। वो जाते हैं, गले में हाथ डाल के रस्सी खोलने का एक्शन करते हैं और वो ऊंट खड़े हो जाते हैं और वहां से चलने लगते हैं, बराबर। द मॉरल ऑफ स्टोरी इज दैट कि हम लोग ऐसी खूंटियों से बंधे हुए हैं, आर्टिकलशिप से, जो बॉस प्रैक्टिस करता था, जो मेरे एम्प्लॉयर प्रैक्टिस करते थे, इनकम टैक्स, ऑडिट, जीएसटी, वही काम मुझे करना है। मेरी दुनिया इसी में सीमित है। लेकिन जो इस बैरियर्स को तोड़ के निकले वो बहुत बड़े आदमी बन गए। हमने सीए जरूर किया है, मल्टीपल नॉलेज है अपने पास, मल्टी सोर्सिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, इंटरप्रेशन अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मुझे वही काम करना है जो मैंने आर्टिकलशिप में सोचा, फाइल कैसे बनती है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना, ऑडिट क्या करना। लेकिन कभी आप आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचेंगे नहीं, ये फील्ड भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। और उससे वन ऑफ द फील्ड इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी डे
एंड डे आउट अपने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी अपने कोर एरिया में कम हो रही है। जैसे जीएसटी ऑडिट अभी हमारे पास रहा नहीं, टैक्स ऑडिट की सीलिंग 40 लाख से 1-2 और फिर 10 हो गई, तो डे बाय डे अपने कम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, तो हमको नया एरिया एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लोर करेंगे हम। आज मैं बताने वाला हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ हम उसमें क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो बताऊं। अगर रामदेव अग्रवाल जी या राकेश झुंझुनवाला या तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है, पोपटलाल, शेखर सुमन, ये अलग हटके, कुमार मंगलम बिरला, ये इसी प्रैक्टिस से बाहर निकलते नहीं तो शायद आज इतने बड़े आदमी नहीं बनते। हमारे पास नॉलेज है, मेहनत है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सीए करता है तो इसमें वो तो कभी बोल ही नहीं सकते कि उसमें मेहनत नहीं है, क्योंकि वो मेहनती नहीं होता तो एग्जाम पास क्रैक कर ही नहीं सकता। हम इतनी मेहनत और इतनी मतलब नॉलेज होने के बावजूद भी हम एक ही जगह बैठे रहे कि नहीं वही काम करना। हमारा दिन कैसे शुरुआत होता है, डे प्लानिंग नहीं होती, सुबह आके ऑफिस बैठते, जो काम आया किया और शाम को घर चले गए। क्या हमने कभी बैठ के अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए कोई बैठ के प्लान किया है कि मुझे ये काम करना चाहिए, या मेरे खुद के पैसे है तो मैं इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करूं। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आपने कभी सोचा कि कंपनी की बैलेंस शीट मैं पढ़ के करूं, या जो मुझे अच्छे से नॉलेज है, आपने दोस्त ने बोल दिया होगा या टीवी पे किसी ने जी इंडिया बिजनेस है जो भी सीएनबीसी पे बोल दिया कि इसमें इन्वेस्ट करने जैसा है तो करें, लेकिन यू आर दी बेस्ट एक्सपर्ट रादर देन दी टीवी एंकर। आप उसको पढ़ के करते तो ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें कभी ध्यान देते नहीं है। मेरा आपका इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बिजी प्रोफेशनल लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उससे हट के कुछ सोचिए, कुछ नया करिए, अपने नॉलेज का उपयोग करिए और कुछ अच्छा कमाइए और देश की सेवा करिए। मैं सबसे पहले अपॉर्चुनिटी बात करता हूँ प्रोफेशनल सर्विस इन रिलेशन टू आईपीआर एप्लीकेशन एंड फाइलिंग एंड रिन्यूअल। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए आपको एप्लीकेशन करने का है और एप्लीकेशन के बाद में 10 साल बाद में ट्रेडमार्क का रिन्यूअल आता है। जैसे एलआईसी में आपको रिन्यूअल आता है, वैसे इधर भी रिन्यूअल आता है। तो आप अगर क्लाइंट का इनिशियल ट्रेडमार्क आपने लिए हैं या नए डे इन डे आउट इसके नए जो प्रोडक्ट डेवलप उसने किए उसका अगर राइट आपने लिया है तो एवरी 10 ईयर उनका रिन्यूअल भी आएगा और क्लाइंट आपके पास रहेगा, क्योंकि आप क्लाइंट को वो मदद कर रहे हैं, वो वैल्यू एडिशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। अपना अभी तक नॉर्मली काम क्या, कॉम्प्लायंस का काम है। कॉम्प्लायंस के काम में क्लाइंट को क्या लगता है, हम हमारा अप्रोच जनरली क्या होता है, ये नहीं करने का, वो नहीं करना है, इस लॉ में ना है, ये ना है, तो उसको हम तो लगता है नेगेटिव। वैसे नेगेटिव हम कभी थे नहीं, है भी नहीं, लेकिन हमको अगर देश ने जवाबदारी सौंपी, हम उसको समझाते कि ये भाई काम करेगा तो लॉ से बाहर चला जाएगा, इसको आपको नहीं करना है। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि दुनिया में पॉजिटिव साइड भी है, ये करो तो अच्छा रहेगा, इसमें इन्वेस्ट करो तो ये रहेगा, आपका फंड वैल्यू ये हो जाएगा, या आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में करोगे तो आपके ब्रांड की वैल्यू होगी, आपका मार्केट में नाम रहेगा। तो ये सब अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका रिन्यूअल का काम कर सकते हैं। सेकेंड रीजन ब्रांड मैनेजमेंट। जैसे बड़ी कंपनी मैंने बताया कि बेल इंडिया, उसके पास 500 से ज्यादा ट्रेडमार्क है और बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट है जिनके पास में 100, 200, 50, 100 ट्रेडमार्क है। तो उनका एवरीडे जर्नल में नाम आता है। आपको मालूम है कि जो भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल होती है उसके जर्नल एवरी 7 डेज में एक जर्नल पब्लिश होते हैं जिसमें आने वाले फ्यूचर के ट्रेडमार्क का नाम होता है कि ये ट्रेडमार्क के लिए इस कंपनी ने एप्लीकेशन किया, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर एक्सिस्टिंग ब्रांड होल्डर को कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपोजिशन फाइल करना जरूरी है। अब वो व्यापारी धंधा करेगा या एप्लीकेशन ढूंढेगा एवरी वीक, तो इसके लिए वो काम आप कर सकते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट के लिए आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे फिक्स अमाउंट में एक अमाउंट नक्की कर सकते हैं कि हम आपको एवरी वीक रिपोर्ट देंगे कि आपके जो इतने ब्रांड है इससे मिलता जुलता नाम के लिए एप्लीकेशन आई है और आपको उसको अच्छे से कैसे अपोज करना है। तो आपके पास में एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपका रिन्यूअल कर सकते हैं और आप उनका ब्रांड का मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा स्टार्टअप में सरकार को भी इंटरेस्ट है। मोदी जी जैसे बोलते हैं कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल, लोकल ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, स्टार्टअप को प्रमोट करना है। सरकार चाहती है कि स्टार्टअप में ज्यादा से ज्यादा नया आइडियाज, नया इन्वेंशन लेके आवे। तो स्टार्टअप में सरकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी बहुत सारी छूट देती है, बहुत सारी फी कम है। आप उनको अच्छे से सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अगर आपको स्टार्टअप में एप्लीकेशन भी करनी है या स्टार्टअप रजिस्टर्ड भी करना है तो आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जानना जरूरी है। तीसरा आईपीआर वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि हेममोर 1080 करोड़ में लोटे कन्फेक्शनरी खरीदी। अब लोटे कन्फेक्शन 1080 करोड़ दिए होंगे तो उसके पीछे कोई बैक वैल्यू तो होगा ना। Why it is 1080 करोड़ रुपीस, why it is not 1200 करोड़। तो आपसे ज्यादा who knows better than the chartered accountant valuation, सीए से ज्यादा कौन जान सकता है। We are the master in the field। और हम अगर इसमें हेल्प नहीं करेंगे तो और कोई करेगा।
और हमारा काम रह जाएगा। क्योंकि इसके लिए देखो टैक्स अथॉरिटी भी चैलेंज करती है, क्योंकि उसमें कैपिटल गेन का इश्यू आएगा, अकाउंटिंग आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको अपने को अकाउंटिंग एंट्री करानी है, गुडविल्स की एंट्रीज आएगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सब कुछ जानते हुए भी इस एरिया से अलिप्त क्यों है? मैं चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में अपने आप को ले आइए, बहुत बड़ा स्कोप है, अच्छी फीस मिलती है, अच्छे कमा सकते हैं। तो वैल्यूएशन में भी आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तीसरे आईपीआर असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी एक आदमी दूसरे आदमी को खरीद सकता है, बेच सकता है, सेम वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच सकती है, एक ट्रेडमार्क होल्डर दूसरे को बेच सकता है, एक पेटेंट राइट होल्डर दूसरे को पेटेंट का राइट दे सकता है। तो ये असाइनमेंट के लिए जो काम आप एडवोकेट्स कर सकते थे वो असाइनमेंट आप भी अच्छे से कर सकते हो। उसमें बड़ी बड़ी 4-5 बातें होती है, बायर कौन है, सेलर कौन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का डिस्क्रिप्शन क्या, ट्रेडमार्क है या पेटेंट है या कॉपीराइट है, और उसकी क्या वैल्यू है, बराबर। इनके अलावा आपको एक और देना पड़ता है नो लिटिगेशन का सर्टिफिकेट। आपको बायर आपसे मांगता है कि जो सेलर है कि हमारा जो ये ब्रांड है आप जो हमको सेल कर रहे हैं वो किसी लिटिगेशन में तो नहीं है, क्योंकि ब्रांड के मैटर में लिटिगेशन बहुत सारे चलते हैं। तो ये आपको एक और करने का है। तो मेजर बड़ी बड़ी चीजें हो गई, जैसे अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में सेल डीप ड्राफ्ट करने के बाद में स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए हम सब रजिस्ट्रार की ऑफिस में जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भर देते हैं और अब प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेते हैं। यहाँ भी स्टैम्प ड्यूटी का सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें भी आईपीआर में भी वैल्यू के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है। तो आपको आईपीआर असाइनमेंट डीड बना सकते हैं, सेल्स के मामले में आप उनसे अमाउंट नक्की करवा सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भर के टैक्स मैटर को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बराबर। टू क्लाइंट्स को आप अगर कर सकते हैं कि आप जो भी डिजाइन बना रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, नई डिजाइन बना रहे हैं, वो किसी कॉपी तो नहीं करें, नहीं तो आपने इतना प्रिंटिंग का मटेरियल किया होगा वो आपका वेस्ट जाएगा, लोग आप पे केस कर सकते हैं। तो कोई भी नया बिजनेस चालू करने के लिए अगर आपके पास में आते हैं अप्रोच टू, यू कैन प्रॉपरली गाइड देम दैट यू शुड नॉट डू दिस प्रोडक्ट, यू शुड नॉट कीप दिस नेम बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेम ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, सो इफ यू विल रिटेन दिस नेम इन योर कंपनी, यू हैव टू क्लोज दिस नेम। सो आप अपने क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगेन एक कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में एक नया डेवलपमेंट हुआ सेक्शन 16 में। आपको पहले मालूम होता था कि आप अगर आपने नाम आरओसी में रजिस्टर्ड करा दिया है, आपने अपना कोई नाम कंपनी में रजिस्टर्ड करा दिया है, बराबर, तो उस नाम को किसी का ब्रांड था और आपने आरओसी में कंपनी रजिस्टर्ड करा दी है, तो वो एक बार कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता था। जैसे मैं उदाहरण दूं तो आपको अगर अमूल का नाम आता है तो अमूल का नाम आने से आपको क्या आता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल आइसक्रीम, बटर्स, ये मिल्क, यही नाम आता है। लेकिन अमूल अंडर गारमेंट्स भी आते हैं, ये जो पहले लॉ की मिस्टेक के कारण हो गया था, क्योंकि आपने कंपनी का नाम आरओसी में रजिस्टर्ड करा दिया था, आप निश्चिंत हो जाते थे कि मेरे को मैं किसी भी ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड होल्डर का भी नाम से कंपनी बना दूं तो मुझे कोई रुकाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप कोई भी नाम एमसी के पास नाम लेने के लिए जाते हैं तो आपके पास सिंपल सी क्वेरी आ जाती है कि दिस इज द रजिस्टर्ड ब्रांड ऑफ सो एंड सो कंपनी, आप ये वो नाम आपको नहीं मिलेगा। सो नाउ देयर इज अ सिंक्रोनाइजिंग बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बिकॉज कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कंपनी के ट्रेडमार्क और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रजिस्टर करती है और एमसीए कंपनी के नाम का करती है। तो ये सिंक्रोनाइज हो गया। अब सिंक्रोनाइज होने से पहले आपको ये क्या लेके आए, अब इस इन द करंट एरा आप किसी का भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसके नाम से आप कंपनी नहीं बना सकते। क्लियर? कंपनी आपके कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसके फर्स्ट नाम से आपको कंपनी का नाम नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने ले लिया है और 3 साल नहीं हुए तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर को राइट है कि वो आरओसी में रीजनल डायरेक्टर के पास जाए और उनको एक्सप्लेन करे, पिटीशन फाइल करे कि ये मेरा रजिस्टर्ड नाम था और आपके मिनिस्ट्री ने या आपके आरओसी ऑफिस ने इस नाम की कंपनी बना दी है, सो प्लीज इंस्ट्रक्ट देम टू चेंज द नेम। सो अगर किसी कंपनी ने आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नाम यूज करके कंपनी बनाई है तो वो कंपनी का नाम आप चेंज करा सकते हैं, क्लाइंट को आप एडवाइस कर सकते हैं। तीसरा कारो 20 जो अभी तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन कारो 20 आने के बाद में आपको एक और ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। अभी तक कारो में अपने क्या करते, फिजिकल एसेट्स का वेरिफिकेशन करते थे, उसके रिलेटेड राइट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते थे। अभी लेकिन जब ये कारो 2020 आ जाएगा तो आपको इनटेंजिबल एसेट्स का भी ऑडिट करने का है। जैसे लोटे कन्फेक्शनरी कंपनी ने 1020 करोड़ रुपए दिए और उसने राइट एक्वायर किया, तो राइट करेक्टली एक्वायर किए है कि नहीं है, कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, ये सब आपको वहां से देखना पड़ेगा। ये क्योंकि इतना अमाउंट दिया है कंपनी का, कहीं भूल से डायरेक्टर ना पर्सनल नाम पे तो नहीं खरीद लिए,
पहले ऐसा होता था कि कंपनी में सब गाड़ियां होती थी और डायरेक्टर खुद पर्सनल नाम पे खरीद लेते थे, कंपनी की बैलेंस शीट में बोलते थे। लेकिन जब इंसॉल्वेंसी एक्ट आया और जब पोजीशन लेने की बात आई तो पता चला कि गाड़ी में कंपनी का तो नाम ही नहीं है, नाम तो सब डायरेक्टर्स के उनके पर्सनल है। तो अभी आपको उसके टाइटल्स डीड को वेरीफाई करना पड़ता है अपने प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो सेम वे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी आपको वेरीफाई करना है। उसकी ipindia.nic. वेबसाइट है, वहां जाके आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। आरओसी में सर्च लेके आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थे आपके बड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपकी अपॉर्चुनिटीज। और अपने जैसे बोलते हैं कि वी आर ए टोटल बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो बिजनेस सॉल्यूशन जब होगा जब आप उसके इनिशियल बिजनेस जब शुरू करता है कोई भी क्लाइंट, तब उसमें आप हेल्प करें। अपने पास क्लाइंट सब धंधा चालू करके बैंक अकाउंट खोल के अपने पास में आता है कि सर जीएसटी नंबर लेना है और इनकम टैक्स पैन नंबर लेना है। अगर उससे इनिशियल में जब वो अपने पास आता है तो अपने उसको ये भी बता सकते हैं कि जिस नाम की तुम फर्म रख रहे हो या जिस नाम के तुम ब्रांड रख रहे हो, क्या वो ब्रांड किसी और के तो नहीं है, या आपने जो खर्चा किया अगर आपने चेक नहीं किया तो ये नाम और कोई ले जाएगा, या आपको बाद में बंद करना पड़ सकता है। अगर आपको इनिशियली आप अपने क्लाइंट को ये एडवाइस करते हैं कि ये नाम जो आप रख रहे हैं वो किसी का नहीं है, रखने जैसा है, किसी से मिलता जुलता नहीं, क्योंकि क्लाइंट इनोसेंटली भी कभी मिलता जुलता नाम रख सकते हैं। उनको मालूम भी नहीं हो कि इंडिया में इस तरह के भी लॉ है, और आपको अच्छे से मालूम है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ मालूम नहीं और आपने गलती कर दी तो सजा भुगतना ही भुगतना। अगर लॉ मालूम नहीं है उसके कारण आपने गलती कर दी है तो उसका कोई एक्सक्यूज है नहीं। तो अपने क्लाइंट को राइट एडवाइस देंगे तो क्लाइंट विल बी हैप्पी और लगेगा कि सबको इनके बारे में भी पता है, बराबर। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम अपने एकदम अच्छे से बताते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले आपको मैं बताऊंगा ट्रेडमार्क के बारे में, हाउ टू रजिस्टर द ट्रेडमार्क। आपको मैं इनिशियली एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसको सिंपल पूछता है कि मेरे को ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है या ये बिजनेस खोलना है, तो आपको फिजिकली कैसे हैंडल करते हैं वो मैं प्रैक्टिकल मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। थ्योरेटिकल की बात जाने दो। इंडिया में एक वेबसाइट है ipindia.nic.in, लिख दिया सबने। वहां से ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, पेटेंट होता है और डिजाइन और जियोग्राफिक इंडिकेशन, ये चार एक ही जगह से रजिस्टर्ड होते हैं, बराबर। ये आपको रजिस्टर करने के लिए आपको किस तरह से अप्रोच आपके पास करनी है, आप सबको मालूम, हम और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कम से कम 200 कॉलम फिल करते हैं। जीएसटी रिटर्न में 200 कॉलम फिल करते होंगे, लेकिन यहाँ पे ही कॉलम है, साफ 10 ही कॉलम है। आपको 10 कॉलम फिल करना है और आपकी फी आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न से 10 गुनी ज्यादा है। ना आपको बार बार अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत है, ना अमेंडमेंट उसमें फ्रीक्वेंटली होता है। ये आपको 10 कॉलम के लिए मैं कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन आपको बता दूंगा कि आपको ये 10 कॉलम क्या क्या भरने का है, और ये 10 कॉलम भर के आपको फिजिकली अपलोड करना है। ना तो ट्रेडमार्क ऑफिस में जाने की जरूरत है, न किसी की हेल्प लेने की जरूरत है। सिंपल क्लाइंट की डीएससी से इसको अपलोड करने का है, और वही डीएससी जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए यूज होती है, आरओसी के में यूज होती है। तो ना तो डीएससी नहीं लेने की जरूरत है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, आपको सिर्फ 10 इंफॉर्मेशन लेके क्लाइंट से उसको अपलोड कर देने का है। अब आपके पास दो तरह की सिचुएशन आ सकती है, मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो एक वह व्यक्ति जिसको नया बिजनेस चालू करना है, दूसरा जो ऑलरेडी बिजनेस में है। मैं पहली सिचुएशन को डील करता हूं, जो नया बिजनेस चालू करना है और उसको आपके पास आया। वो आया साबू जी के पास में, पूछा कि मुझे ये बिजनेस चालू करना है, ये मेरी फर्म का नाम रखना चाहता हूँ, ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ, या मेरा ये पार्टनरशिप फर्म का नाम रखना चाहता हूँ, और मुझे ये बिजनेस करना और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है और इस नाम से प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे। तो अपना पहला रोल होता है कि वो अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम कोई रखना चाहता है, बराबर, तो सबसे पहले उस फर्म को देखो और उसको बताओ कि ये नाम ऑलरेडी किसी के नाम पे तो नहीं है, क्योंकि फर्म का नाम भी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड होता है। अगर आपने किसी के मिलते जुलते नाम की रजिस्ट्री कर ली या सेम नाम की कॉपी कर ली तो वो फर्म आपको फ्यूचर में जाके बंद करना पड़ सकता है। ये तो फर्म या बिजनेस ट्रेड नेम की बात हुई। दूसरा, सपोज प्रोडक्ट उसने डेवलप किए, फूड प्रोडक्ट्स, उसमें अलग अलग नाम से प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो भी आपको चेक करके क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये तो ये नाम ऑलरेडी मार्केट में है, आप ये नाम मत रखो, बराबर। ये दो सिचुएशन हुई, बिजनेस का नाम और दूसरा प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम। तो आप नए क्लाइंट को तो एडवाइस आप
वेबसाइट पे जाके चेक करके बता सकते हो। कैसे चेक करना वो भी बताऊंगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपकी फर्म ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में सेल करना चालू कर दिया, ब्रांड यूज करना चालू कर दिया है, आपकी पीढ़ियों निकल गई लेकिन आपने रजिस्टर नहीं कराया, तो उसको रजिस्टर करना है। और इन दौरान बहुत सारे लोग सेम नाम को लेके मार्केट में आ भी गए, क्योंकि आप मिस करके बस आपने अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया, लेकिन आप यूजर वर्षों से कर रहे हैं, आप बोनाफाइड है, लेकिन आपने यहाँ पे आप अपने को रजिस्टर नहीं करा पाए। ये आइडियल सिचुएशन है। तो पहली केस में आप ipindia.nic. की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आपको चेक करना होता है कि ये जो नाम है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप उसमें जाके आईपी सर्च करके ऑप्शन आता है, वहां पे जाए पब्लिक सर्च में जाके नाम डालो और स्टार्ट विद आपका किस नाम से, जैसे ये बिस्लरी का आपको नाम चेक करना है, कोई पानी की बोतल बनाने वाला आपके पास क्लाइंट आता हो, बिस्लरी की जगह बिस्लरी करके नाम कुछ स्पेलिंग चेक करके लेके आता है, बोले कि मुझे पानी की बोतल बना के बेचना है, पैक वाटर बेचने का बिजनेस करना है और मुझे इस नाम से बेचना है, क्या ये नाम मैं रख सकता हूँ कि नहीं रखता। तो आपको ट्रेडमार्क की ipindia.nic की वेबसाइट पे जाने का है, वहां जाके ये बिस्लरी नाम टाइप करना है, स्टार्ट विद बिस्लरी, और आपको क्लास डालना पड़ेगा। आपके लिए नया सब्जेक्ट है, क्लास क्या होता है। तो ट्रेडमार्क एक्ट में टोटल प्रोडक्ट या सर्विस को 35 प्रोडक्ट के लिए और 10 सर्विस क्लास के लिए, इस मिला के कुल मिला के 45 क्लासेस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। दैट इज कॉल्ड अ नाइस क्लासिफिकेशन। नाइस is a city where this classification has been finalized. तो आपको क्लास 1 से 35 तक आपके प्रोडक्ट में आपका माइक्रो से माइक्रो लेवल का भी प्रोडक्ट आपका, आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्या इसका नाम है क्या नहीं, ये तो सरकार की लिस्ट में वो सब है, इंटरनेशनली सब है। माइक्रो लेवल पे उसकी सब कुछ आप सर्विस डाल दोगे या प्रोडक्ट या नेचर डाल दोगे, फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं या केमिकल बना रहे हैं या मशीनरी बना रहे हैं या गुटखा बना रहे हैं या पास्ता बना रहे हैं, पिज्जा बना रहे हैं, जो भी सिगरेट बना रहे, ड्रिंक्स बना रहे, सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रहे, हार्ड ड्रिंक्स बना रहे, ये सब आपका जो आपको क्लास को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट के लिए आपको क्लास वही जहाँ पब्लिक सर्च है उसके ऊपर दिया हुआ है नाइस क्लासिफिकेशन, तो वहां जाके आपको जो भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करोगे तो वो क्लास आपको बता देगा। सो आपको स्टार्ट विद, आपको नाम आपके पास है बिस्लरी, तो ये सपोज ये क्लास 32 में आता है, तो 32 उसमें डालोगे नाम बिस्लरी और 32, और आप क्लिक करोगे तो बता देगा कि बिस्लरी नाम की इतनी इतनी कंपनी है, या बिस्लरी नाम ही नहीं है तो बता देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। सो आप निश्चिंत हो जाता है कि अगर ऑलरेडी इस नाम से बिस्लरी नाम से है तो आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि ये नाम आप मत रखो, ऑलरेडी है, और आपके ऊपर लीगल शूट फाइल हो जाएगा। क्लियर? ये तो वो आपका एक्सिस्टिंग का। अभी ऐसा आइडियल सिचुएशन भी हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि नो रिकॉर्ड फाइल मींस ये नाम अवेलेबल है, आप इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन और बताई थी कि जो ऑलरेडी मार्केट में वर्षों से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उनके लिए तो वो तो अभी वो नाम तो चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है और पुराने यूजर भी है, बोनाफाइड भी है, तो उनको तो एप्लीकेशन भले सर्च करने के बावजूद मिलते जुलते नाम है तो भी आपको एप्लीकेशन कर ही देनी है, और आपको प्रायोरिटी मिलती है हु वाज अ प्रायर यूजर। उसमें एक आपको कॉलम भरने का है कि डेट ऑफ यूज कब है, अगर आप बाद वाले से पहले आए हुए हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी और आपको राइट मिल भी सकते हैं, इवन तो मार्केट में ऑलरेडी नाम है। सो क्लियर हो गया, ये ऑलरेडी थे और नए के लिए। अब आपको एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले कॉलम होता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, 10 ही कॉलम है, बिल्कुल ज्यादा कॉलम नहीं है, और ये कॉलम भी आपको किसी भी, अगर टाटा की एप्लीकेशन वेरीफाई करनी है, रिलायंस की करनी है, आप वेबसाइट पे जाके नाम रिलायंस डाल दो, रिलायंस ग्रुप की जितनी कंपनी है सब ट्रेडमार्क आपके सामने आ जाएंगे, और उन्होंने कैसे एप्लीकेशन की वो भी आप देख सकते हो, देख देख के भी सीख सकते हो, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपके मन पसंदीदा कोई भी ब्रांड मार्केट में जाते हो और उसका नाम आके घर आके आप चेक कर सकते हो उसने कैसे अप्लाई किया था, क्या क्या कॉलम भरना पड़ता है। सो नंबर 1 आपको लिखना है नेम ऑफ एप्लीकेंट। सो एप्लीकेंट कौन हो सकता है, तो एप्लीकेंट कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति ट्रेडमार्क का एप्लीकेंट हो सकता है, क्लियर, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है थ्रू तेरे पार्टनर नेम, एलएलपी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, क्योंकि ट्रस्ट की बहुत सारी हॉस्पिटल्स और वो चलती है, ट्रस्ट चैरिटी एक्टिविटीज करती है, ब्लड डोनेशन बैंक चलाती है, तो ये सब भी उसमें एप्लीकेशन करते हैं, उनको भी राइट्स मिलते हैं। सो इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया, प्रॉपर्टरशिप, पार्टनर्स, ज्वाइंट नेम से भी एप्लीकेशन हो सकती है। तो पहला कॉलम है नेम ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट आपने आपका नाम भर दिया,
अगर प्रॉपरेटर है तो सपोज एक्स है, पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कोई एप्लीकेशन की या शिव भगवान जी असावा ने की, तो एप्लीकेंट में शिव भगवान जी असावा, बराबर, एप्लीकेंट। दूसरा ट्रेड स्टाइल, आपकी ट्रेड स्टाइल क्या है, आपने फर्म का असावा एंड कंपनी हो सकता है, वॉट एवर नेम, तो वो आपको ट्रेड बिजनेस नेम को लिखना है, आपकी फर्म का नेम, प्रोप्राइटरशिप में जो भी फर्म आपने नाम रखे उसकी ट्रेडिंग स्टाइल का नाम रखना है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम रखना है, और एप्लीकेंट में सब पार्टनर का नाम आता है। अगर एप्लीकेशन पार्टनरशिप कर रही है तो एप्लीकेंट में सब पार्टनर्स के नाम आएंगे और ट्रेड डिवीजन में फर्म का नाम आ जाएगा। सो नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ट्रेड स्टाइल, और फिर होता है आपको लिखने का है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या करने वाले, जैसे मैंने बोला कि पानी की बोतल बनाने का, तो आपको लिखने का है मिनरल वाटर्स, तो आपको मिनरल वाटर हो गया। फिर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, तो क्लास आपका 32 इसमें हो गया, वो क्लास आपको पब्लिक सर्च देख के आप पता कर सकते हैं। तो ये आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट लिख दिया, आपने इनकी ट्रेड स्टाइल लिख दी, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड और सर्विसेज आपने लिख दिया। फिर एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आपको एप्लीकेंट का एड्रेस डालना है, अब जो भी है, फर्म है तो फर्म का एड्रेस क्या है, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का एड्रेस आपको डालना है। फिर डालना है कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है डेट ऑफ फर्स्ट यूज, आप फर्स्ट यूज आपने ये अपना प्रोडक्ट कब किया। अगर आपके पास, मैंने दो ही कंडीशन बताई थी कि नया क्लाइंट आपके पास आता है, नया प्रोडक्ट चालू करना है, तो वहां आपको लिखना है प्रपोज टू बी यूज्ड, मतलब हम इस नाम को बाद में यूज करने वाले हैं। या दूसरे केस में आपको लिखने का है ऑलरेडी नाम आपने चालू है, तो आपको फर्स्ट आपने ये नाम कब एडॉप्ट किया, जैसे आपने इसके लिए सॉप एंड एस्टैब्लिश एक्ट में कब लिया, या फर्स्ट बैंक अकाउंट कब खोला इस नाम से, फर्म के नाम से, या जीएसटी नंबर कब लिया है, या सेल टैक्स नंबर कब लिया था। तो आप जो लीगली आप फ्यूचर में जाके प्रूव कर सकते हैं, ऐसी डेट आपको वहां डालने की है, या तो आइदर प्रपोज टू बी यूज या आपने डेट कब यूज किया वो आपको वहां डालना है। सो ये क्लियर होगा। फिर आपको लोगो है, तो लोगो की जेपीजी फाइल या जो ब्रांड रखना है उस ब्रांड का नाम आपको लिखना है, और नाम और लोगो एक ही एप्लीकेशन में हो सकते हैं, तो आपको ट्रेडमार्क की चीज लेने का उसका नाम लिखना है। जैसे बिस्लरी का लेना है तो आपको बिस्लरी नाम लिखना पड़ेगा, बिस्लरी का जो लोगो उन्होंने बनाया है तो वो बिस्लरी का लोगो आपको वहां डालना है। उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट आता है, आपको फी कितनी पे करनी है, बराबर। ये सब एप्लीकेशन की तो फी की बात आती है। इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए 4500 है अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो 5000, पार्टनरशिप में 9000, ऑनलाइन और ऑफलाइन 10000। आप ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन ज्यादा क्यों, क्योंकि वहां जाके सरकार को डेटा वापस पंच करना पड़ेगा। अगर आप डेटा पंच आप खुद कर लेते हैं, खुद ऑनलाइन कर देते हैं, तो सरकार के पास डेटाबेस रेडिली मिल जाता है। तो डेटाबेस रेडिली के लिए आपको 1000 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको पैसा कम भरने की जरूरत है। तो हम भी चाहते हैं कि आप एप्लीकेशन फिजिकली करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दो, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, और वो भी क्लाइंट के नाम से ही आपको करना है। आपका नाम कहीं आने वाला ही नहीं है, आपका ईमेल एड्रेस डाल दोगे तो मेल आपके ऊपर आ जाएगा, कंपनी का डाल दोगे तो कंपनी के पास ईमेल आ जाएगा जो आपको बता देगा कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, एप्लीकेशन में इतना नहीं है 10 कॉलम, ना आपको 100-200 कॉलम जीएसटी के भरने, ना 100-200 कॉलम इनकम टैक्स रिटर्न के भरने, जिसमें ये कैलकुलेशन और वो कैलकुलेशन, और फी मुश्किल से 5-2-4 हजार रिटर्न भरने का मिलता है। इन सबसे अच्छा अगर आप ये करो, और इतना बड़ा मार्केट है, अगर मैं थाने की बात करूं तो ईच एंड एवरी शॉप का नाम रजिस्टर्ड हो सकता है, ईच एंड एवरी सर्विस प्रोवाइडर का नाम रजिस्टर्ड हो सकता है, चाहे होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, पब, बार, मतलब नाई, स्त्री, धोबी, मतलब कोई भी जिसका नाम है, जिस नाम से वो धंधा करता है या जिस नाम से प्रोडक्ट बेचता है, जिस नाम से सर्विस प्रोवाइड करता है, ईच एंड एवरी नाम इज रजिस्टर्ड। लेकिन जरूरत है उनको अवेयर करने की, उनको समझाने की, उनको समझाना पड़ा कि ये नाम आप रख लो, नहीं तो आपके नाम का कोई और यूज करेगा तो आपके नाम आपका खराब होगा और अल्टीमेटली बेनिफिट वो ले जाएगा। तो इतना ह्यूज मार्केट है, आपको काम कुछ करना नहीं है, सिंपल 10 कॉलम भरने हैं। 10 कॉलम भी इतने आसान है कि आप आराम से, मैंने जो नाम बताया वही आपको भरने का है। ये भर के आप फिजिकली ऑनलाइन उसको अपलोड कर देंगे, गवर्नमेंट की फी ऑनलाइन भर दो और अपलोड कर दो। इसमें शिवगंज जी किसी को प्रॉब्लम है क्या, अगर इंटरेक्टिव करना है तो? एनीवन ऑफिस वेयर कोई सुन रहे हो तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सी आपकी एप्लीकेशन है, आप उसको एप्लीकेशन को कर दिया, बराबर। अब आपकी रिक्वायर्ड फी आपने भर दी, सरकार में फी में रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड है, बराबर,
तो उसको 50% फी लगेगी। मतलब छोटे लोगों को सरकार भी प्रमोट करती है और उनकी फी भी 9,000 की जगह 4,500 हो जाएगी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको भी अगर एमएसएमई है तो 50%, और स्टार्टअप है तो उसके लिए 50% फी है। ये मोटा मोटा गवर्नमेंट का फी का स्ट्रक्चर है जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। डीएससी लगा के आप अपलोड कर दो। जैसे ही आपने एप्लीकेशन कर दी तो आप अपने क्लाइंट को बोल दो कि इसके आप अपने ब्रांड के ऊपर टीएम लिख सकते हैं। टीएम मींस अप्लाइड फॉर दी ट्रेडमार्क। आप अपने ट्रेडमार्क के ऊपर टीएम लिख सकते हैं। या आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट यूज करते हो और टीएम लिखा हुआ है तो आप ये इतना समझ सकते हैं कि टीएम का मतलब इस पार्टी ने ब्रांड के लिए एप्लीकेशन की है और उसको ट्रेडमार्क मिला नहीं है, अंडर प्रोसेस है। आर लिखा इस मींस द मार्क इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और वो उसके पास में लीगल राइट है। सो टीएम लिखा उसके पास में लीगल राइट नहीं है लेकिन वो अप्लाइड किया हुआ है, वो प्रोसेस में है। अब आगे की प्रोसेस क्या हुआ, सपोज आपने ये एप्लीकेशन कर दी, आगे क्या करना होगा। जैसे ही आपने एप्लीकेशन कर दी तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट होता है और लाइफ टाइम वही रहता है जिसको हम आप टीएम नंबर बोलते हैं, एप्लीकेशन नंबर। बराबर वो आप अपने पास रख लीजिए और एवरी टाइम आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है वो ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकता है। उसमें ना कोई कंसल्टेंट कुछ कर सकता है ना कॉर्पोरेट कर सकता है, ये गवर्नमेंट सिस्टम ड्राइवन है काम। वो एप्लीकेशन नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो एप्लीकेशन का क्या क्या हुआ आगे। तो वो प्रोसेस कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन आपने कर दी, आपके पास टीएम नंबर आ गया। टीएम नंबर आ गया तो अब नेक्स्ट सरकार के पास वो एप्लीकेशन चली गई तो सरकार उसमें क्या क्या एक्शन, फर्दर एक्शन लेते हैं। तो नंबर 1 एक्शन ये होगी कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन करी तो सरकार क्या करेगी, अपने पास जो डेटा बैंक है जो नाम के, वो डेटा बैंक से एप्लीकेंट के मार्क को कंपेयर करेगी। क्लियर कि अवेलेबल जो डेटा है सरकार का वो एप्लीकेंट के नाम से कंपेयर करेगी और उसको एक रिपोर्ट जनरेट करके भेज देगी कि आपका नाम इनसे मिलता जुलता है तो भेजेगी, नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक जनरल क्वेरीज आती है कि आपका जो नाम है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या है। जैसे मैं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर की बात करूं तो आप जो थाने ब्रांच के मेंबर देख रहे हैं, जैसे ही कमलेश साबू का नाम देखा होगा तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कमलेश साबू मीन्स द रीजनल काउंसिल मेंबर। या शिवगुगन असावा जी है वो चेयरमैन है। क्यों किया, आपको डिस्ट्रिक्टिव कैरेक्टर के शिवगुगन जी ब्रांच के चेयरमैन है और वो रीजनल काउंसिल मेंबर है। ऐसा क्लियर कट डिमार्केशन है। अगर आप 2 प्रोडक्ट लेके जाएं और दोनों में वो क्वालिटी नहीं है कि ये प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है तो आपको वो राइट मिल नहीं सकता। मैं आपको उदाहरण दूं, आपके सामने 2 कंप्यूटर पड़े हैं, 2 लैपटॉप पड़े हैं, बराबर। एक लैपटॉप पे जिसपे डेल लिखा हुआ है DELL और दूसरे पे आधा खाया हुआ सेब रखा है। तो आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये डेल का कंप्यूटर है और ये एप्पल का है। अगर दोनों लैपटॉप आपके सामने रखे और दोनों में कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं अलग तो वो नाम कैसे रजिस्टर कर, कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए रजिस्टर नहीं हो सकता। इट मींस की जेनेरिक नाम किसी का रजिस्टर्ड नहीं होगा। पानी के लिए पानी रजिस्टर्ड नहीं होगा, पेन के लिए पेन नहीं होगा, मिर्ची के लिए मिर्ची नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप अकेले का राइट तो है नहीं, पूरे देश का राइट है, पूरे वर्ल्ड का राइट है। तो कोई भी प्रोडक्ट का जेनेरिक नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है। और आपके प्रोडक्ट में वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट करे या आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे दूसरे को डिफरेंशिएट करे। जैसे सर्विस प्रोवाइड में डेलॉइट, KPMG, PwC और EY, ये चारों चार अलग नाम है, अपने आप को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सब अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर, अकाउंटिंग ऑडिट सर्विस प्रोवाइडर तो एक दूसरे को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आपके ब्रांड में ये कैरेक्टर होना चाहिए। तो जनरल क्वेरीज क्या आती है प्रोसेस में, नंबर 1 है कि आपका ट्रेडमार्क इनसे मिलता जुलता है और दूसरी क्वेरीज है कि आपका जो नाम है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है। ये 2 क्वेरीज नॉर्मली मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में नॉर्मली ये 2 क्वेरीज लगभग सब ट्रेडमार्क में आपको ये डिपार्टमेंट भेजता है। So that is called a examination report. The first step after filing of application, the action taken by department is issue the examination report of the applicant. तो examination report में section 9 की queries होगी, 9 और section 12 की 11 की। 9 और 11 ये जनरल queries है, section 9 है वो कहता है कि आपका ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का नहीं है और दूसरी है आपके जो एप्लीकेंट मार्क है दैट इज
जो जो आपने जो एप्लीकेशन किया है वो मार्क दूसरे से मिलता जुलता है, तो आपको क्यों ना इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, बराबर। तो ये जो आपका जो मार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई उसकी आपको कॉम्प्लायंस करने का है। तो कॉम्प्लायंस करने के लिए आपको क्या देखना है कि सबसे पहले क्वेरी का रिप्लाई मॉडल आंसर ये है कि माय ट्रेडमार्क इज एट हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब मेरा ट्रेडमार्क दूसरे से डिफरेंशिएट हो ऐसा कैरेक्टर उसमें है। और दूसरा, जो आपने डिपार्टमेंट ने जो साइटेड ट्रेडमार्क किया है विच इज डिफरेंट फ्रॉम माय ट्रेडमार्क, तो मेरे जो ट्रेडमार्क है उससे ये ट्रेडमार्क डिफरेंट है। तो दोनों का ये मॉडल आंसर है और दोनों के मॉडल आंसर आपको वहां पे अपलोड करना है। मैंने एक और आपको इनिशियल एप्लीकेशन के टाइम बताया था कि आपको डेट ऑफ फर्स्ट यूज रखना है, और डेट ऑफ फर्स्ट यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आगे का जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मिलते जुलते नाम आएंगे, अगर वो मिलते जुलते नाम आपके एप्लीकेशन के बाद के हैं तो प्रायोरिटी आपको मिलेगा। सेक्शन 12 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1990 सेज द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द बोनाफाइड यूजर। बोनाफाइड यूजर है उसको ये राइट आपको पहले मिलेगा। तो आपको अपने को पहले जो फर्स्ट यूज किया है वो डेट आपको करेक्ट लिखना है। इसका मैं एक आपको उदाहरण पढ़ दूं। आप सब जानते हैं कि पहले माणिकचंद जो गुटखा खाते होंगे, माणिकचंद नाम का गुटखा आता था, पड़ी की आती थी माणिकचंद की, और लोग बहुत खाते थे माणिकचंद की पड़ी की। लेकिन उसी दौरान रसिकलाल माणिक जो आरएमडी रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल जी हैं, उनके मार्केटिंग स्टाफ ने बोला कि सर मार्केट में ये मालिकचंद नाम की गुटखा कंपनी भी है जो अपने नाम की कॉपी कर रही है। अपना मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है, अच्छा बेच रहे, अच्छा कमा रहे, लेकिन अगर कोई अपने नाम का डुप्लीकेशन करेगा तो हमारा प्रॉफिट गिरेगा, ब्रांड मार्केट में अपनी साख की भी गिरेगी, क्रेडिट भी गिरेगी। अगर वो क्वालिटी बिगाड़ता है डुप्लीकेट करने वाला तो अपना नाम खराब होगा। तो एमडी को जज किया कि बराबर कह रहे मार्केटिंग स्टिंग, तो ये जो मालिकचंद नाम की कंपनी उसको बंद कराना चाहिए। हम मानिकचंद है, बड़े प्लेयर है, बड़ा नाम है। उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया, रजिस्ट्रार के वहां एप्लीकेशन करी, ऊपर गया सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट किया कि हु वाज अ प्रायर यूजर, मानिकचंद गुटखा कंपनी प्रायर यूजर थी या मालिकचंद गुटखा कंपनी प्रायर यूजर थी। तो दोनों में से ऐसी टेस्ट के बाद पता चला कि मानिकचंद से पहले मालिकचंद नाम की गुटखा कंपनी मार्केट में थी, लेकिन उसका मार्केट शेयर कम था। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि प्रायोरिटी नहीं थी। तो मानिकचंद कंपनी को बोला कि आप अपना ब्रांड बंद कर दीजिए, मालिकचंद आज प्रायर यूजर, और ये नाम मालिकचंद रहेगा, आपको मानिकचंद बंद करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा झटका लगा एक्शन लेने से पहले, और उनको वो ब्रांड बंद कर देना पड़ा। बंद करने के बाद वो आरएमडी लेके आए, आरएमडी रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल जो गुटखा खाते हैं उनको मालूम हुआ कि ये उसी माणिकचंद का न्यू वर्जन, नया अवतार है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रायर यूजर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको ये कॉलम अच्छे से देख के समझ के आपको भरने का है, बराबर। तो ये बताने का मतलब ये था कि जो आपने जो ये प्रायोरिटी यूज है, तो कभी ये लोग क्वेश्चन आते हैं कि एक नाम के दो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। तो ये एक नाम के दो एप्लीकेशन हो सकता है क्योंकि दोनों ने अलग अलग पीरियड में प्रोडक्ट चालू किया हो। किसी ने महाराष्ट्र में किया हो, किसी ने गुजरात में किया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महाराष्ट्र का प्रोडक्ट जो है वो गुजरात में नहीं बेचने वाला है, और महाराष्ट्र वाला गुजरात में नहीं है, गुजरात वाला महाराष्ट्र में नहीं बेचना। तो इस तरह से रजिस्ट्रार अकोमोडेट करके दे सकते हैं कि भाई प्रायर यूजर को तो अकोमोडेट करना ही है, क्योंकि किसी भी ब्रांड वाले को दो तरह से राइट मिलते हैं, बराबर। एक राइट तो अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क 1999 सेक्शन 35 से राइट मिलेंगे, और नहीं है तो आपको सिविल लॉ में तो प्रोटेक्शन मिलता ही है। आपके नाम का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता, आपके नाम का यूज कोई और नहीं कर सकता। तो ये आपको नाम तो आपके पास में रहते ही है, इसलिए आपको ये प्रोटेक्शन तो आपको लीगली मिलते ही है। अब मैं आपको अगर आप बोले किस तरह से इनका राइट को प्रोटेक्ट करना है और क्या नुकसान जाता है इस ट्रेडमार्क एक्ट को नहीं लाने से। अगर कोई व्यक्ति इसमें जो डुप्लीकेट करता है तो दो लोगों को फायदा होता है और दो को नुकसान होता है। अब किन दो लोगों को फायदा होता है और किन दो को नुकसान होता है वो मैं आपको बताऊं। जिससे आप कमलेश साबू जी मार्केट में निकले, लुई फिलिप्स का शर्ट लेना, थाने के मार्केट में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे लुई फिलिप्स का शर्ट खरीदना है। लुई फिलिप्स का शर्ट खरीदना, घर से भी मूड बना के गए थे, पैसे भी उसके हिसाब से अपने को पे करने का था, वो नक्की। लेकिन वो शोरूम में जाते हैं और शोरूम वाला व्यक्ति ये जानता है
कि मैंने जिस मैन्युफैक्चरर से खरीदा है वो लुई फिलिप्स का ओरिजिनल शर्ट नहीं है, उसने टैग मार के दिया है, और वो फैक्ट्री का मालिक जिसने ये लुई फिलिप्स शर्ट बनाया है डुप्लीकेट टैग मार के, उसको भी मालूम है कि मैं जिस शोरूम ओनर को ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ वो ओरिजिनल नहीं है। वो मैन्युफैक्चरर भी जानता है और बेचने वाला भी जानता है। ये दोनों फायदे में रहेंगे क्योंकि ये पैसा ले रहे हैं लुई फिलिप्स के ओरिजिनल शर्ट का और दे रहे हैं डुप्लीकेट। तो इन दो को तो फायदा हुआ और उन दो लोगों को नुकसान होगा। एक तो यूजर कमलेश साबू जी जो ये घर से सोच के गए थे कि भाई मेरे को लुई फिलिप्स का शर्ट लेना है, और मार्केट में से घर जाने के बाद 1 महीने बाद पता चलता कि ये तो लुई फिलिप्स का शर्ट है, इतनी खराब क्वालिटी का, इतना ब्रांड होने के बावजूद इतना पेमेंट किया भी इतनी खराब क्वालिटी है। तो एक तो उनको नुकसान होगा और दूसरा उस कंपनी को नुकसान होगा जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर करती है। उसके यहाँ नाम मार्केट में खराब होगा कि यार लुई फिलिप्स कंपनी इतनी अच्छी कंपनी, देखो कितना घटिया शर्ट बना दिया, उसको ये तो मालूम ही नहीं कि डुप्लीकेट हुआ। तो ओरिजिनल कंपनी को नुकसान जाएगा, ओरिजिनल यूजर को नुकसान जाएगा, डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरर को जाएगा और डुप्लीकेट ट्रेडर को। तो इन दो लोगों को फायदा होता है, उन दो लोगों को नुकसान होता है। इसीलिए मैं बोलता कि आपको जो भी राइट्स के लिए जो एप्लीकेशन में जो एक ही बात का ध्यान रखने का है, वो परफेक्ट डेट लिखनी है आपको, डेट ऑफ फर्स्ट यूज, बराबर। अभी ये एप्लीकेशन आपके पास एग्जामिन करके गवर्नमेंट ने भेज दी, क्वेरीज रेज करके भेज दी, आपने उनका मॉडल आंसर भी दे दिया। अब मॉडल आंसर मिलने के बाद सरकार इस पे क्या करती है? अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि जो हमने क्वेरीज रेज की थी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में और जो रिप्लाई एप्लीकेंट ने सबमिट किया है उससे वो सेटिस्फाई है, तो ही विल इश्यू ऑर्डर कॉल्ड एबीए, एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, और जर्नल में भेज देगा। एवरी 7 डेज में एक जर्नल ट्रेडमार्क आती है और एवरी जर्नल में ट्रेडमार्क जो एप्लीकेंट ट्रेडमार्क है जिसको नाम रखना है वो पब्लिश होते ही है, वो पब्लिश होते हैं और वो 4 महीने के लिए जनरल पब्लिक के लिए ओपन रहता है। अगर किसी भी आदमी को अगर लगता है कि इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा तो मुझे नुकसान जाएगा, तो उसको उसका अपोज कर सकता है। तो ये उसको अगर रजिस्ट्रार क्लियर कट अगर सेटिस्फाई है तो एबीए ऑर्डर कर देगा और जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेज देगा। दिस इज आइडियल सिचुएशन। अगर ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन बाय एप्लीकेंट्स, तो वो दे कैन आस्क फॉर हियरिंग, आपको हियरिंग में बुला सकता है। अभी तो हियरिंग भी फिजिकली है नहीं, ऑनलाइन ही है, और उस हियरिंग में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने जो एप्लीकेशन की है ट्रेडमार्क के लिए, हमने जो बोनाफाइड क्लेम किया है वो हम ही कर रहे हैं, इतने साल से हम यूज कर रहे हैं, हमारा राइट बनता है, हमने इतने तास पे सेल किया है, इतना एडवर्टाइज में खर्चा किया हुआ, इतना हमारा मार्केट शेयर है। तो देन यू हैव टू फाइल वन एफिडेविट विच प्रूव योर प्रायर क्लेम, और आपका जो बनता है वो आप उसको वहां पे रजिस्ट्रार के सामने एफिडेविट फाइल करेंगे, और आप उनको जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है, जैसे आपने फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट कब दिया था प्रोडक्ट का, या फर्स्ट सेल बिल कब दिया था, ना इतना टर्नओवर हुआ है, वो आप अपनी बैलेंस शीट से बता सकते हो, P&L से बता सकते हो। जो भी आपके केस को जेन्युइन प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको देना पड़ेंगे। पहले केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सब आपने बोला, सरकार ने आप पे विश्वास कर लिया। जैसे अपने MEF में फॉर्म फाइल करते हैं, सबके लिए इंक्वायरी नहीं आती है, अभी कुछ गिने चुने सीए को वो मंगवाते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भेजो, ये भेजो। तो अगर कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ बराबर है। अदरवाइज अगर कुछ चाहिए, अगर हियरिंग में रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि इनके क्लेम के लिए मुझे और फर्दर डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो डॉक्यूमेंट उनसे आपसे मंगवा सकता है। और वो हियरिंग की डेट आपको ऑनलाइन ही आएगी, आपको जूम मीटिंग पे उसकी लिंक आ जाएगी, आप जूम मीटिंग में आपको अटेंड करना है वो मीटिंग, और उसके रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करना है, बराबर। अगर रजिस्ट्रार उसमें सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अगेन वापस ऑर्डर जो पहले वाले केस में किया था एबीए ऑर्डर, इस केस में भी कर देगा, एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, एबीए ऑर्डर कर देगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, जिसके सामने आप अपील फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड एंड इज नॉट विलिंग टू इश्यू द एबीए ऑर्डर एंड योर फाइल विल बी नॉट पब्लिश और योर एप्लीकेशन विल बी नॉट पब्लिश इन द ट्रेडमार्क जर्नल। सो दिस विल बी द सिचुएशन। सो एबीए ऑर्डर आपने कर दिया, आपकी पब्लिश ट्रेडमार्क जर्नल पब्लिश में होने चली गई, बराबर। चली गई तो 4 महीने आपको वेट करना है, और उन जो लोगों ने आपके एप्लीकेशन से जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो आपके एप्लीकेशन के सामने अपोजिशन फाइल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अपोजिशन ऑफ ट्रेडमार्क। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क बोलते हैं, जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू करते हैं और जो एप्लीकेशन के बाद टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वो लिखते हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उसपे एग्जामिनेशन रिपोर्ट किया है, वो पेंडिंग है
ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट के रिप्लाई के लिए। और यहाँ आपको आएगा अपोजिशन। तो आपको जो भी पार्टी जो आपको अपोजिशन करना चाहती है उसको TMM फाइल करना पड़ेगा विद लीगल फी ऑफ 2700, और उसको ये सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर हो जाता तो मुझे ये नुकसान है, या मैं इन टाइम से पहले हूँ, मैं मार्केट में पहले हूँ, मेरा मार्केट शेयर इतना है, इसका अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया तो मुझे ये नुकसान जाएंगे। आपको अपने फायदे भी गिनाने हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी देने हैं, और सामने वाले के करने से आपको क्या नुकसान जाएंगे वो सब आपको पूरा का पूरा TMM फाइल करके आपको देना है। जब TMM की कॉपी गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो उसकी एक कॉपी आपको मिलेगी। मतलब जो एप्लीकेंट ट्रेडमार्क आप है, आपको बताएंगे कि आपका ट्रेडमार्क एडवर्टाइज तो हमने कर लिया था, लेकिन इन लोगों ने आपको अपोज किया है, अब इसके बारे में आपको क्या करना है। तो जैसे ही आपके पास अपोजिशन की पूरी डिटेल आ जाती है, देन यू हैव टू अगेन फाइल अ काउंटर स्टेटमेंट। उसको ही TMM ही बोलते हैं। उसमें आपको उसके सब जो उसने आपके ऊपर एलिगेशन किया उसको आपको काउंटर करने हैं। इससे जो एलिगेशन लिया वो बेसलेस है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, हाँ मैं बोनाफाइड जेन्युइन यूजर है। अब दोनों का क्लेम अपना अपना हो गया। एक बोलता है मैं भी जेन्युइन हूँ, वो बोलता है मैं भी जेन्युइन हूँ। तब इसके केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, फिजिकल हियरिंग के लिए उन दोनों को बुलाएगा। दैट इज कॉल्ड हियरिंग ऑफ अपोजिशन। आपको एविडेंस भी उस केस में दोनों को फाइल करना है, और वो आपको 60 डेज टाइम पीरियड मिलता है। जैसे ही सामने वाला कोई अपोजिशन फाइल करता है तो रजिस्ट्रार आपको जो भेजेगा तब से 60 डेज में आपको काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना है। और काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने के बाद में टाइम पीरियड के बाद में रजिस्ट्रार दोनों को हियरिंग का नोटिस भेजेगा। आप दोनों पार्टी को बुलाएगा और दोनों पार्टी को प्रूव करने के लिए बोलेगा कि आपका अपोजिशन क्यों जेन्युइन है, और आप बोलते हैं हमारा अपोजिशन क्यों इसने गलत किया। आपको वहां पे दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि जो एप्लीकेशन को अपोज किया वो आदमी सही नहीं है, तो उसका अपोजिशन को रिजेक्ट कर देगा और आपके फेवर में ऑर्डर कर देगा, और आपको ये ट्रेडमार्क आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर रजिस्टर को लगता है कि ये अपोजिशन किया वो करेक्ट है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, जिसके सामने आप अपील फाइल कर सकते हैं। ये आपको फाइलिंग और एप्लीकेशन, जब वो 4 महीने का पीरियड जब पूरा हो जाता है और ना कोई अपोजिशन आता है ना, तो आपको रजिस्टर का सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप अपने नाम के ऊपर R लगा सकते हैं और वो 10 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। बराबर, यहां तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, 10 साल के लिए आपको बस वैलिड रहेगा। क्लाइंट्स को बोलना है कि 10 साल बाद में इसको रिन्यू करना है। उस दौरान हो सकता है कि आपका मेन ब्रांड, जैसे पतंजलि मेन ब्रांड है, और उसके बीच बीच में वो नए बराबर में रोज प्रोडक्ट लाते रहते हैं, तो और कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो आप उसको उस मार्क को आपके साथ में एसोसिएट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये मेरा मेन ब्रांड ये है, उसका ये एसोसिएट ब्रांड है। तो आपको वो प्रायोरिटी नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको मिलेगी। आपको मेन एप्लीकेशन का नंबर डालना है अगर अपने आपको एसोसिएट करना है मेन ब्रांड के साथ। जैसे पतंजलि का कोई भी ब्रांड आता है तो मेन पतंजलि है, उसके बाद में जो भी नाम वो रखेगा उसको इसके साथ में एसोसिएट करती है। इससे आपको इजी हो जाएगा आपका काम, आपको जल्दी वो ट्रेडमार्क मिल सकता है। अब किसी को ये भी होगा कि मुझे फास्ट कराना है तो क्या करने का। किसी कभी कोई क्लाइंट आता है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी चाहिए, मैं 4 महीने वेट नहीं कर सकता। इस प्रोसेस में 8-9 महीने लग जाते हैं नॉर्मली, ये आपको आर आने तक। अभी किसी लोगों को बहुत जल्दी होती है तो हाँ, ऐसा भी प्रोविजन है। आपको गवर्नमेंट की फी डबल भरनी है, एग्जैक्टली डबल, और आपको डबल फी भर के आपको फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं। लेकिन आपकी जो जर्नल का पीरियड है 4 महीने तो हो ही रहेगा, बाकी पीरियड आपका जो 3-4 महीने वो घट जाएगा। वो 15 दिन में आपको एग्जामिन करके फास्ट ट्रैक में भेज देंगे। लेकिन आपका जो एडवर्टाइजमेंट पीरियड है उसमें कुछ कमी होने वाली नहीं है, तो ये फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं। अभी आपके पास आ गया 10 साल में आपको रिन्यू करा सकना है, तो 10 साल के बाद में जो भी गवर्नमेंट की जो रिक्विजिट फी है वो आपको भर के कराना है। अब आपका नाम ब्रांड में आ गया तो मैंने आगे बताया था कि ब्रांड को मैनेजमेंट करना। अब जैसे आपका नाम रजिस्टर तो हो गया, लेकिन हर 7 दिन में जर्नल तो आती है। अगर वह आपके नाम से मिलता जुलता कोई एप्लीकेशन करेगा तो आप उसको रोकोगे कैसे। तो वो अपने प्रोफेशनल अपने काम ले सकते हैं क्लाइंट से और अपने ट्रैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आता है, आप अपने जो मेन डेटाबेस है उसमें डाल दो कि ये मेरे क्लाइंट का लिस्ट है, और वो एवरी 7 डेज कंपेयर करके बता देगा कि इस नाम से मिलते जुलते नाम आ रहे हैं, और आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं। उसमें 2 फायदा है, एक तो क्लाइंट का नाम प्रोटेक्ट आप कर रहे हो, और दूसरा आपको अपोजिशन की फी मिल रही है 20-25 हजार। तो आपके लिए तो दोनों फायदे हैं, आपने ब्रांड मैनेजमेंट की भी फी ले रहे हो और आपको अपोजिशन के लिए भी एक्स्ट्रा फी मिल रही है।
जो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन की फीस है ज्यादा, डबल फी आप अपोजिशन हैंडल करने में आपको मिलती है। तो दोनों तरफ से फायदा ही है। तो आप अपने क्लाइंट्स को डे टू डे में अपोजिशन के बारे में भी बता सकते हैं। इज इट क्लियर? बराबर। अभी ये जो अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिए हैं तो क्या आपने इसको बेच सकते हैं, और क्या दूसरे लोगों के दिमाग में ये क्वेरीज रहती है कि क्या मैं इंडिया में जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करा है वो वर्ल्ड वाइड चलेगा? मेरे को अमेरिका, यूएसए, हांगकांग, लंदन, सिंगापुर जाके बिजनेस करना है, तो क्या मैं इसी नाम से कर सकता हूं? ना। ट्रेडमार्क इज एन टेरिटोरियल राइट। आपको इंडिया में वो नाम आपका इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, और बाहर अगर आपको जाना है तो बाहर की कंट्री में जाके आपको बाहर वहां पे जाके अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी आप वहां पे ये धंधा कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, अमेरिका की जो फेमस ब्रांड है उसका इंडिया में रजिस्टर करा के नया काम चालू कर देते हैं। लेकिन ये इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जिस दिन वहां की अमेरिकन कंपनी इंडिया में आएगी और वो बताएगी कि मेरा फर्स्ट बोनाफाइड यूजर मैंने यूके यूएसए में ये काम किया था और इसने इसका डुप्लीकेट करके इंडिया में रखा है, तो इंडियन को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका बोनाफाइड यूजर होना चाहिए। लोगों को बहुत सारे जो सूरत जाएंगे तो सूरत के रिंग रोड में घूमेंगे तो अमेरिका की सब बिल्डिंग के नाम रिंग रोड पे ही है। ट्रेड सेंटर ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, WTO ने, मैनहट्टन ने, वो सब पूरा का पूरा यूएस का नाम यूज किया हुआ है। तो जो आपको बोनाफाइड नहीं है, अब ये आप एक दूसरा और मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दूंगा कि ये इस तरह से इंटरनेशनल एप्लीकेशन को कैसे किया जाता है। ये तो अपने डोमेस्टिक एप्लीकेशन के बारे में बताया। अब ये डोमेस्टिक का मेरे राइट कैसे ट्रांसफर होता है, फिर मैं बताऊंगा इंटरनेशनल एप्लीकेशन कैसे होती है। लोकल में किसी को प्रॉब्लम है क्या इस रजिस्ट्रेशन तक? अगर आप कोई सुन रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? लोकल एप्लीकेशन कैसे की जाती है, कैसे फाइल की जाती है किसी भी लेवल पे? गणेश भाई कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। तो ओके सर, कैन यू प्लीज एडवाइज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर? ओके, आई विल गिव दैट नेम, नो प्रॉब्लम। तो ये जो आपका एप्लीकेशन फाइल होगी, रजिस्टर्ड हो गया, रिन्यूअल्स के बारे में आपको बता दिया। आपको इंटरनेशनल करना है तो क्या करने का? इंटरनेशनल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लीगल राइट ट्रांसफर कैसे होते हैं। अपने पहली अपॉर्चुनिटी बताई थी कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको ये ट्रेडमार्क आपने ले लिया है, आपको इसको सेल करना है, आपको इसको असाइन करना है, बेचना है। तो सेम जैसे आपने एक बंगलो लिया, एक ऑफिस ली, एक गाड़ी ली, घर लिया, उसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वैसे इस राइट्स को भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अपने ट्रेडमार्क के जो राइट लिए हैं, जो आपके नाम की एप्लीकेशन, जो आपके नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आप सामने वाले को बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको बेचने के लिए असाइनमेंट डीड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। असाइनमेंट डीड, जैसे आपने फिजिकल अगर आपको ऑफिस बेचनी है या लैंड बेचनी है तो क्या करते हैं? सेम देखते हैं कि बायर कौन है, नंबर 1, सेलर कौन है, नंबर 2, थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये जमीन कहाँ है या बिल्डिंग कहाँ है, कौन से फ्लोर पे, कौन से माले पे क्या है, कौन सी जमीन पे खड़ी है, बराबर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर, जनरल वैल्यू ना, बायर नेम, सेलर नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी कंसिडरेशन में क्या है, बराबर, कंसिडरेशन क्या है। और तीसरा, कंसिडरेशन के अलावा आपको इसमें नो लिटिगेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरे राइट्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बोनाफाइड राइट है, जेन्युइन राइट है, आई एम दी बोनाफाइड सेलर। तो ये जो ड्राफ्ट करने का, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट डीड। असाइनमेंट डीड आपको ड्राफ्ट करके आपको जो रिक्वायर स्टेट ड्यूटी है, तो स्टैम्प ड्यूटी इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो ड्यूटी है वो ड्यूटी आपको वहां पे ऑनलाइन भर देने का है और असाइनमेंट डीड को अपलोड कर देने का। अब जैसे ही असाइनमेंट डीड सरकार के पास जाता है तो सरकार इसके बारे में कैसे एक्शन लेती है। पहला राइट तो ये देखती है कि जो सेलर है वो बोनाफाइड है कि नहीं है। इसमें बोनाफाइड राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी एक कोई जमीन, पुश्तैनी जमीन है आपके फोर फादर्स की, और वो जमीन आप सेल कर रहे हैं, जैसे आपके दादा के नाम की जमीन है, बराबर, और पोता सेल कर रहा है, तो जब सेलर है तो उसमें पोता अकेले का तो राइट नहीं होगा, उसके फादर का होगा, उसके अंकल का होगा, उसके बुआ का होगा, उसकी सिस्टर का होगा। तो एक फैमिली ट्री बनता है। उसका ट्रेडमार्क में भी ऐसा ही है, जो सेलर राइट सेल कर रहा है वो उसका खुद का इंडिविजुअल है। जैसे आपने बोलते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को अगर बिल करना है तो कर सकते हैं, बेचना तो बेच सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या पार्टनरशिप फर्म में वो ट्रेडमार्क लिया हुआ है, या आपके फोर फादर के नाम का वो ट्रेडमार्क लिया है, तो आपको फोर फादर के ब्रांड का सबको राइट मिलता है, इवन दो बुआ और सिस्टर्स को भी मिलता है। तो वो उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप वो ट्रांसफर राइट कर पा सकते हैं, क्योंकि वो राइट जो आपके पास है नहीं
वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको लीगल हेयर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको लीगल हेयर का ट्री बनाना पड़ेगा और उनसे एनओसी लेके रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा आपके नाम पे कि भाई ये हम हमारा राइट छोड़ रहे हैं या हम भी ज्वाइंट सेलर हैं, हमको भी ये कंसिडरेशन मिल रहा है। आइदर यू बी ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन और यू बी पार्ट ऑफ रिलीक्विस ऑफ राइट। आइदर आप राइट छोड़ रहे हो, आप कंसिडरेशन ले रहे हो, तो रजिस्ट्रार उसकी जेन्युइननेस ऑफ सेलर की देखेंगे। अगर खुद सेलर खुद के नाम का है तो ट्रांसफर कर देगा, अगर खुद सेलर है लेकिन वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम से है या फैमिली की है तो उसके लिए वो नोटिस निकालेगा, आपको फिजिकली हियरिंग के लिए आपके पास बुलाएगा और सब जो स्टेक होल्डर है जिसके जिसके नाम उसमें है वो सब से एनओसी आने के बाद में ही वो रजिस्ट्रार सब्सिक्वेंट ओनर का नाम पे लिखिए। यहाँ पे सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर मींस हु इज द नेक्स्ट ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। यहाँ प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में प्रोप्राइटर विडी जो होता है वो प्रोप्राइटर का मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं है। या हियर में भी प्रोप्राइटर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, प्रोप्राइटर में भी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर में भी एलएलपी, प्रोप्राइटर में भी। यहाँ प्रोप्राइटर का मतलब मालिक से है, ऑनर से है, इंडिविजुअल व्यक्ति से नहीं है। तो रजिस्ट्रार जब असाइनमेंट डीड आपके पास रजिस्ट्रार के पास जब फाइल होता है तो पूरी के पूरी ड्यू केयर करने के बाद में या नोटिस निकाल देगा आपको ये डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है, आप आओ एक्सप्लेन करो तभी ये ट्रांसफर होगा। ये सब रिक्वायर्ड फी अगर आपने कम भरी है तो भी बोल सकता है कि आपको स्टैंप ड्यूटी कम भरी है, आपको स्टैंप ड्यूटी और भरना है। ये सब करने के बाद में रजिस्ट्रार नेक्स्ट ओनर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। आपको समझ में आ गया कि राइट कैसे एक्वायर किए जाते हैं, कैसे 10 साल तक रिटेन किए जाते हैं, कैसे इसको सेल किया जाता है। ये तो हुआ ट्रेडमार्क के। अब मैं आप बोलता हूँ कि इंटरनेशनल, मैंने जैसे कि बताया कि ट्रेडमार्क इज ए टेरिटोरियल राइट। आपके ट्रेडमार्क का नाम आपकी कंट्री में यूज कर सकते हैं, तो दूसरी कंट्री में करना है तो क्या मैं यहाँ बैठा वर्ल्ड के सब राइट ले सकता हूँ? यस, द आंसर इज यस। आपने एक में प्लेटफॉर्म का नाम आपने नाम सुना होगा कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO तो अभी बहुत सुना होगा। कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम आप और हम रोज सुनते थे WHO ने ये नहीं किया, WHO ने वो नहीं किया। सो ऑल दीज आर द लिम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। WTO इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, WHO इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड। ऐसा ही एक और नाम है कॉमर्शियल वर्ड में, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर्स कंट्री को ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी कंट्री के होम कंट्री के ट्रेडमार्क ऑफिस से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैड्रिड प्रोटोकॉल। और उसमें आपको प्लेटफॉर्म यूज करना वन टाइम फी लगेगा, दैट इज इन स्विच फ्रैंक। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो WIPO की वेबसाइट है, सेम अपने लिखो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और वहां आपको बता देगा कि किस कंट्री में एप्लीकेशन करना है तो कितनी फी है। सो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म। अगर आप यूएसए में जाके ट्रेडमार्क रजिस्टर कराओगे तो आपको यूएस का लॉयर रिटर्न करना पड़ेगा, वहां के एडवोकेट का फी यहाँ से बहुत ज्यादा। हम लोग तो फ्री में काम कर रहे हैं, मतलब नो, मतलब वो जो चार्ज करे उसको मतलब नो के बराबर है। वहां के लॉयर पर आवर चार्ज करते हैं, डॉलर्स पर आवर डॉलर में चार्ज करते हैं, तो वो ट्रेडमार्क बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। यहाँ पे बैठ के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मल्टीपल कंट्रीज में फाइल कर सकते हैं। अगर एक ही जैसे बिस्लरी की पानी की 10 कंट्री में एप्लीकेशन करनी है तो आपको प्लेटफॉर्म यूज करने की एप्लीकेशन फी वन टाइम स्विच फ्रैंक में भरनी पड़ेगी और बाकी अलग अलग कंट्री की फी है वो आपको इसमें ऐड कर देंगे। ये फी कहां से आपको पता चलेगा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वेबसाइट है और उस वेबसाइट में आप जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं कि किस कंट्री की कितनी फी है। तो वो फी भर के आप उस एप्लीकेशन को जितने कंट्री में करनी है वहां से कर सकते हैं। तो अभी ये आपने एप्लीकेशन कर दी तो व्हाट इज द मैड्रिड प्रोटोकॉल्स या जो WIPO का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या करेगा? एप्लीकेशंस को अलग अलग कंट्री में डिसेमिनेट कर देगा। जिस कंट्री की एप्लीकेशन आई है वो वहीं से उन कंट्री में भेज देगा और वो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट आएगी वो वापस आपको भेज देगा। आगे क्या आपको भी कॉम्प्लायंस उस कंट्री के लॉ के हिसाब से आपको करना है, आपको उस कंट्री का लॉ पता होना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी लॉ सब एक जैसे, क्योंकि WIPO आने के बाद में जब इनिशियली जब एग्रीमेंट हुआ था 1995 में, तब ऐसा नक्की किया था कि भी 10 साल डेवलपिंग कंट्री को देंगे टू अमेंड इन देयर लोकल लॉ। आपका लोकल लॉ इंटरनेशनल लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो आपका जो कंट्री का जो भी लॉ है वो दैट शुड बी एट पार विद द इंटरनेशनल लॉ या उसके समकक्ष होना चाहिए। और इंटरनेशनल लॉ लगभग UK और US के बराबर में वही डोमिनेट कंट्री करते हैं उनको।
तो अभी अपने इंडिया के जो ट्रेडमार्क 1999 है वो दैट इज पार विद इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन वो भी सेम है, इंटरनेशनल में जो लॉ है लगभग वही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये आपको इंटरनेशनल लॉ के लिए आप वाइपो प्लेटफॉर्म का आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, आपको कॉस्ट कम लगेगी। तो आपको सिंगापुर में जाना है तो आप अहमदाबाद में, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, जो भी कंट्री 196 कंट्रीज इसके मेंबर कंट्री है, वहीं आपको ये प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अगर आप उसके उस मेंबर के कंट्री नहीं है तो इस तरह से आप उसको नहीं कर सकते, आपको इस कंट्री का मेंबर होना चाहिए, बराबर। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई। इस कंट्री लो जैसे ही वो एप्लीकेशन कंट्री आपके पास ये एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन कंट्री आपके पास में जब ये इंटरनेशनल लॉ की मेडिट के थ्रू फाइल कर देते हो, मेडिट प्रोटोकॉल आपको एग्जामिनेशन के भेज देती है, उसमें एक एप्लीकेशन में एक इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सेम कॉलम है जो मैंने आपको पहले बताया, इंडिया की एप्लीकेशन और उनकी एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं, एक और कॉलम है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। आपका फर्स्ट ओरिजिन कौन से, उस कंट्री में आपका ट्रेडमार्क ओरिजिन में है कि नहीं है, कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर इंडिया में आप ट्रेडमार्क यूएस के लिए कर रहे हैं तो आपको इतना देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेडमार्क इंडिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपका इंडिया में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपको ये प्रायोरिटी आपको मिलेगी, बराबर। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि यूएस के जो ट्रेडमार्क है और आप यहाँ नाम यूज कर करके कर रहे हैं, जिस दिन यूएस कंपनी इधर आएगी और वो बताएगी कि ये नाम मैं अमेरिका में पहले से कर रहा था और मुझे इंडिया में प्रायोरिटी चाहिए, तो वो इंडिया में जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मिला है उसको कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। नॉर्मल केस में रेक्टिफिकेशन नहीं होता, रेक्टिफिकेशन सुधार नहीं, रेक्टिफिकेशन हियर इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन इज कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन। अगर आपने फ्रॉडुलेंटली एप्लीकेशन ली है इवन दो यू पास थ्रू ऑल द प्रोसेसेस, लेकिन जब अगर कोई जब रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करता है और वो बाद में बता देता है कि मेरा जेन्युइन यूजर था, जेन्युइन बोनाफाइड यूजर था, फिर भी ये इसको मिल गया है, उसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट करो, तो ये ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो सकता है, बट बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन आपको बोनाफाइड रहना, आपको कुछ डुप्लीकेट फाइल नहीं करना है। इसलिए बोलता कि जिस कंट्री का है तो उस कंट्री का बोनाफाइड को लगी, लोगों को बहुत शौक है कि जापान की कोई फेमस ट्रेडमार्क को इंडिया में लाके यूज कर देंगे, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अगेन जब वहां की कंट्री एग्जामिनेशन करके भेजते हैं तो अपने अपने लॉ के हिसाब से कर देंगे, वहां के जर्नल में पब्लिश हो जाएगा और वहां के हिसाब से जो रिक्वायर्ड फी है तो उस कंट्री का ट्रेडमार्क आपके पास आ जाएगा और वो भी रिन्यूअल के हिसाब से आपको पे कर देना है। तो मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करता वो भी आपको बता दिया, कैसे राइट असाइन करते वो भी बता दिया। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ, देखो ट्रेडमार्क हुआ आपके पास में, उसमें ट्रेडमार्क में किसी को क्वेरीज है कि देखो क्वेरीज डी टॉप इन्होंने भेजा है, can you please name of the software वो आपको डी Anilal Shah sir, you can unmute yourself and raise. can you process of making a manufacturing of registered सबका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ट्रेडमार्क तो सेम ही है ना, उसमें नाम है, नाम यूज करना है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग तो सेम। So और एक क्वेरी थी, क्या क्वेरी? deed of relinquishment separate deed should be for each member or can be taken in one single? Can be taken jointly, no problem. Individual है, बहुत लोग हैं अलग अलग बैठे हैं, जैसे एक दिल्ली बैठा है, मुंबई बैठा, तो सब जगह तो पेपर भेज नहीं सकते ना। अगर एक ही घर में बैठे हैं जॉइंटली रिलिंक्विश कर सकते तो कर सकते हैं, राइट को रिलिंक्विश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, नो प्रॉब्लम। Okay. And what is the name of the software to check names? वो आइलॉट करके कंपनी है अहमदाबाद की, उसका सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, आइलॉट का। Okay, sir. Please note. Can you process of making or manufacturing to be registered? मतलब समझ में नहीं आया, प्रोसेस क्या चाहते हो? वो तो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग वो इन्वेंशन है, इन्वेंशन के टाइम में आएगा। अभी मैं आपको ट्रेडमार्क का बता रहा था। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट को कैसे रजिस्टर किया जाता है, पेटेंट्स क्या है और उसको कैसे रजिस्टर किया जाता है। ट्रेडमार्क के बारे में आप काफी कुछ जान गए, मैं पेटेंट के बारे में बता दूं। पेटेंट मींस दी नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, बराबर। इन्वेंशन है, जरूरत है तो इन्वेंशन होगा, बराबर। अगर आपका जो इसके लिए 2-3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पेटेंट रजिस्टर कराना है कोई भी प्रोसेस के बारे में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो एक तो सबसे पहले तो होगा कि द इन्वेंशन शुड बी न्यू टू द वर्ल्ड, इन्वेंशन वर्ल्ड के लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा नॉन ऑब्वियस, पूरा गांव जानता है वो हम नहीं, सीक्रेट वो नहीं जो आप और मैं जानू और पूरा गांव जानता है वो सीक्रेट नहीं।
जग जाहिर वस्तु का कोई पेटेंट नहीं होता। इन्वेंशन, देयर शुड बी इन्वेंशन, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, और बिफोर कमिंग टू द कॉमर्शियल मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रोडक्ट नया प्रोसेस कर दी, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, और आप चाहते हैं कि हमारे प्रोसेस की कोई कॉपी ना करे, हमारे जो नया प्रोडक्ट लाए उसकी कोई कॉपी ना करें, तो आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चालू नहीं करना है जब तक कि आपको पेटेंट के राइट के लिए आप अप्लाई नहीं कर देते, बराबर। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, इसमें वो जग जाहिर हो गया, आपको पेटेंट उस पर नहीं मिलेगा, बराबर। जैसे ये आपने ये कोविड के टाइम वैक्सीन में देखा, तो कोविड के जो भी वैक्सीन के लिए जो भी फॉर्मूलाज लाए वो सब पहले गवर्नमेंट के पास पेटेंट करवा के बाद में मार्केट में लेके आए, बराबर। तो पेटेंट्स का मैंने बताया कि द इन्वेंशन विच शुड बी न्यू टू द वर्ल्ड, नंबर 1 नॉन ऑब्वियस, दूसरा कॉमर्शियल मार्केट में आने से पहले, और तीसरा इसका कॉमर्शियल यूज होना चाहिए। अगर कॉमर्शियल यूज नहीं हो रहा है तो कोई पेटेंट सरकार ग्रांट नहीं करेगी। अब ये पेटेंट ग्रांट कर दिया तो पेटेंट होल्डर को राइट है, वो पेटेंट होल्डर का राइट 15 ईयर तक है कि भाई ये मेरे पेटेंट को किसी को यूज करने देना है या नहीं देना है तो किस रेट पे क्या मेरा टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो पेटेंट को फुल फ्रीडम है। ये वो पार्टी के साथ नेगोशिएट करके मैंने ये इन्वेंशन के पीछे ये खर्चा किया हुआ है, तो दूसरों को तो कॉपी कर नहीं सकते, वो उसकी परमिशन के बगैर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकता। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वो इन्वेंशन देश के हित में थी, और वो जो इन्वेंटर या वैज्ञानिक था या जो मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेंशन कंपनी थी, इज इट कैपेबल ऑफ डूइंग दी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कोविड के वैक्सीन के टाइम में बात आपको बताऊं कि इन्होंने प्रोडक्ट तो बना दिया और देश के लिए जरूरी भी है, लेकिन वो उसका मास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है उस कंपनी की, तो क्या सरकार उस इन्वेंशन को अपने हाथ में ले सकती है? यस, ले सकती है। वो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री वो इन्वेंशन को खुद ले सकती है, और जिन्होंने इन्वेंशन किया उसको रिजनेबल अमाउंट नेगोशिएट करके दे सकता है। लेकिन अगर उसको जरूरत है तो इन्वेंशन को अपने हक में ले सकती है। ये इन्वेंशन की, तो उसमें भी सेम वही प्रोसेस है, एप्लीकेशन का नाम है, इन्वेंशन आपकी क्या थी, क्या फॉर्मूलेस थे, वो सब आपको एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को एप्लीकेशन मिलने के बाद में आपके लिए वो हो सकता है कि नया प्रोडक्ट है, लेकिन वहां पे आईआईटी के इंजीनियर बैठे हैं, उनको सब पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड में पहले से ही है, तो वो शायद आपको न भी ग्रांट करें। दूसरा, इंडिया में सॉफ्टवेयर का कोई पेटेंट नहीं होता। यूएस में सॉफ्टवेयर का पेटेंट ग्रांट होता है, लेकिन इंडिया में सॉफ्टवेयर का कोई पेटेंट ग्रांट नहीं होता। इंडिया में आपको सॉफ्टवेयर का पेटेंट कराना है तो आपके साथ हार्डवेयर होना चाहिए। जैसे आपने बीपी चेक करने की एक मशीन बनाई, साथ में सॉफ्टवेयर है लेकिन हार्डवेयर है, वो मशीन है, मशीन के साथ उसका रिजल्ट देगा, जैसे ब्लड का, तो वो आपको पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं। यूनिक इन्वेंशन है तो आपका सॉफ्टवेयर के साथ में हार्डवेयर है, तो नहीं तो कभी कभी लोग लेके आते हैं हमने ये फॉर्मूला बना दिया और हम चाहते हैं कि कोई नहीं वर्ल्ड में बनावे। ऐसा फॉर्मूला आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए या दुनिया के लिए वो ऑलरेडी मार्केट में हो ही सकते हैं। तो इन्वेंशन न्यू टू दी वर्ल्ड, नॉन ऑब्वियस, बिफोर कमिंग टू कॉमर्शियल मार्केट, और कॉमर्शियल यूज हो तभी आपको पेटेंट के ग्रांट्स मिल सकते हैं। और पेटेंट्स के ग्रांट में सरकार आपको फर्दर 5 साल के लिए भी पेटेंट को ग्रांट कर सकती है। उनको लगता है कि उनकी कॉस्ट रिकवर नहीं हुई है तो फर्दर कर सकती है। इसलिए पेटेंट्स को ग्रांट इसलिए करते हैं कि कोई भी जितने भी डेवलप कंट्री बना आप देखते हैं ना, वो सबके पास में पेटेंट है, क्योंकि उन्होंने नया इन्वेंशन किया, और कोई इन्वेंशन नहीं होता उस देश का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, बराबर, और उसके पास टेक्नोलॉजी देखो। जापान एक छोटा सा कंपनी है, टेक्नोलॉजी देखो। अमेरिका को देखो, ब्रिटेन को देखो, वो क्यों वर्ल्ड पे राज करते हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो लोग अपने देश के साथ साथ में अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, कंफर्ट के लिए भी इन्वेंशन करते हैं। देखो ना, इतनी गर्मी लगती थी तो उन्होंने एसी का आविष्कार कर दिया। इतना दूर फोन पे बात नहीं होगी तो मोबाइल आ गया। आप देखो ना, प्लेन का आविष्कार हो गया, ट्रेन का आविष्कार हो गया, तो ये सब इन्वेंशन है, लाइट का। तो ये इन्वेंशन के कारण उन देश का नाम है। वो इनका एक वक्त नासा है तो डे इन डे आउट ये नासा वो कोई डेवलपमेंट कर ही रहा, अपना इसरो कर रहा है वैसा। तो इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार लॉ लेके आई, ये जो पेटेंट एक्ट 1970 अभी इंडिया में फोर्स में है। इज इट क्लियर? पेटेंट में किसी को प्रोसेस इशू है क्या? ये कोई लिखता रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशू। यस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू। ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, बिल्कुल आपको कलर सर्टिफिकेट आएगा, 10 ईयर का वैलिड होगा, क्या आपको क्या राइट मिला है, किस पे डिस्क्लेमर किया है, वो सर्टिफिकेट आपको आएगा। ये पेटेंट के बारे में पता चला। अभी मैं आपको बताता हूँ ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, जीआई के बारे में। जीआई के बारे में आपने सुना कि ये आपको नया प्रोडक्ट है, जैसे पाटन के पटोले, आगरा के पेटे, रतलामी सेब, बीकानेरी भुजिया, ये सब उस क्षेत्र के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो
वो वहाँ के कल्चर है या वहाँ के हवा पानी की वजह से है। ये इसका मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि जो शैंपेन है दैट इज द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का वर्ल्ड में पहला रजिस्ट्रेशन जीआई का है। जो भी शैंपेन आएगी वो फ्रांस के उसी शैंपेन डिस्ट्रिक्ट से आएगी। शैंपेन एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है और अभी तो सब शैंपेन के नाम से डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। अभी जैसे आगरा के पेठे हैं तो वो टेस्ट आगरा के पेठे का आगरा वालों कई पेठे ले तो ही टेस्ट आता है, यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो अब क्या हो सकता है कि आगरा के पेठे आप अहमदाबाद में बैठ के लगा सकते हैं या थाने में बैठ के लगा सकते हो? तो नहीं, वो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जीआई राइट है वो उसके लिए एप्लीकेंट एक एसोसिएशन होता है। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल होता है, पार्टनरशिप फर्म होती है, एलएलपी होती है, कंपनीज होती है। उस केस में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के केस में एप्लीकेंटल विल बी एसोसिएशन, और एसोसिएशन के जितने भी मेंबर है वो सब उस नाम का यूज कर सकते हैं। और वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो एसोसिएशन डिसाइड करता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको एसोसिएशन में से हटा दिया जाएगा। जैसे रतलामी सेब, तो रतलाम के जितने भी अलग अलग ब्रांड के मैन्युफैक्चरर है वो रतलामी सेब नाम लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे आर दी member of that association and they are abide by the rules and regulation which is framed by the association। आपको वो क्वालिटी आपको करने का, आपको क्वालिटी मेंटेन करने का है। तो ये जो जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, वो बेसिकली सरकार लॉ इसलिए लेकर आई कि किसी की ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण वो प्रोडक्ट फेमस है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, कांजीवरम की साड़ियां, ढाका की मलमल, ये सब प्रोडक्ट, पश्मीना साल कश्मीर की, तो वो उस लोगों के जो रोजी रोटी है, रोजगार है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार लेके आई है। तो आप यहाँ बैठ के उस नाम को, यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन, यू कैन नॉट, आप अहमदाबाद में बैठ कर रतलामी से लगा नहीं सकते या बीकानेरी भुजिया लगा नहीं सकते। ये राइट उन्हीं व्यक्तियों का है जो उस एसोसिएशन के मेंबर है, जिन्होंने राइट सरकार से जीआई के ऊपर राइट लिए हुए हैं। इसमें किसी को क्वेरी जीआई के बारे में, उसका भी सेम प्लेटफॉर्म है, यही ipindia.nic.in पे जाके अप्लाई करने का है। तो पेटेंट का भी सेम एप्लीकेशन है, जेई का भी राइट है। और थर्ड में आपको बता दूं डिजाइन एक्ट। इंडिया में डिजाइन एक्ट का अवेयरनेस नहीं है, मालूम नहीं है। बाकी घड़ी की डिजाइन, मोबाइल की डिजाइन, कार की डिजाइन, कंप्यूटर की डिजाइन, माउस की डिजाइन, परफ्यूम की बोटों की डिजाइन, जूते की डिजाइन, आप एक जूते की डिजाइन दूसरे जूते से मिलती नहीं होगी। एक कार की डिजाइन दूसरे कार से मिल नहीं सकती। एक कार का इंटीरियर आप दूसरे कार के इंटीरियर से मैच नहीं कर सकते। एक ये एसी के रिमोट का डिजाइन भी रजिस्टर्ड है। घड़ी, पेन, पेंसिल, मोबाइल, इतना ह्यूज मार्केट है, एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड। और आप किसी भी डिजाइन की कॉपी कर ही नहीं सकते। तो आपको डिजाइन के लिए राइट चाहिए तो आपको डिजाइन एक्ट में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसमें भी सेम है इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक्सेप्ट आपको आपके डिजाइन का डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोज करना पड़ेगा सरकार को। आपको स्टेटमेंट ऑफ नोवेल्टीज देना पड़ेगा सरकार को कि मेरी डिजाइन दूसरे की डिजाइन से क्यों डिफरेंट है। बराबर, मैं जो डिजाइन के लिए रजिस्टर्ड ग्रांट मांग रहा हूँ वो मेरी डिजाइन किसी की मैंने कॉपी नहीं की है, मेरे डिजाइन में नोवेल्टीज है। उसके अलग अलग एंगल से फोटो चाहिए, डिजाइन के अलग अलग डिजाइन एंगल्स, जो भी टॉप बॉटम, जो भी 4D फोटोज, वो सब फोटो आपको सरकार को कलकत्ता भेजना है। और वहां पे ये एग्जामिन करके आपको ये बताएंगे कि ये एप्लीकेशन के बाद में राइट आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जैसे आपने सूरत में जैसे साड़ी है तो रोज साड़ियों की नई नई डिजाइन आती है, कपड़े की नई डिजाइन आती है। आप डिजाइन मास्टर को लाखों रुपए की सैलरी देते हैं और बाजू वाला उसी को कॉपी करके नया अगर डिजाइन कर दे तो जो ओरिजिनल जो कंपनी है जिन्होंने ये डिजाइन बनाई है उसको काफी नुकसान जा सकता है। तो आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप दूसरे की बनाई हुई डिजाइन को आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसको लीगल राइट है डिजाइन एक्ट 2000 से। तो एक तो अपने प्रोएक्टिव रोल लेके भी समझा सकते हैं, और दूसरा ये राइट ग्रांट करने के लिए अपने खुद एप्लीकेंट्स क्लाइंट्स के लिए अपने एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अच्छी खासी फीस अपने को मिल सकती है। ये दोनों अपने काम क्लाइंट के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो पेटेंट एक्ट में भी अपने अच्छे से काम किया जा सकता है। पेटेंट के बाद में एक आता है कॉपीराइट। ये जो नया चैप्टर, कॉपीराइट, फिल्म का कॉपीराइट, म्यूजिक का कॉपीराइट, बुक्स ऑथर ने जो लिखी है उसका कॉपीराइट, या कोई आपके पास दुर्लभ पेंटिंग पड़ी है, एंशिएंट पेंटिंग पड़ी है, उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हैं। तो कॉपीराइट के लिए एप्लीकेशन आपको दिल्ली में करना है, ये इस वेबसाइट के थ्रू नहीं होगा। वो copyright.com जो सरकार की जो कॉपीराइट की एप्लीकेशन है, आप कॉपीराइट वेबसाइट लिखोगे तो आ जाएगा। उसमें भी आपको जैसे आपको एग्जांपल दूं तो डॉक्टर गिरीश आहूजा सर ने इनकम टैक्स की बुक लिखी, पब्लिश जैसे टैक्समैन कर रहा है, बराबर। तो गिरीश आहूजा सर बुक क्यों लिखेंगे? क्योंकि उनको कुछ रॉयल्टी मिलेगी, और रॉयल्टी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलती रहेगी, लाइफ टाइम या ऑथर 64 ईयर या लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, व्हिचएवर इज लोअर, ये ऐसा
कॉपीराइट का लॉ है। तो ये आप वो बुक लिखते हैं और पब्लिशर उस पर कॉपीराइट देता है कि उसका भी राइट प्रोटेक्ट होगा, आहूजा साहब की राइट प्रोटेक्ट होगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आहूजा राइट को पूछे बिगर वो पब्लिशर बुक बना के बेच दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको जब कॉपीराइट की एप्लीकेशन करनी है तो आपको ओरिजिनल ऑथर से एनओसी लेना जरूरी है। जिन्होंने बोनाफाइड जो किताब लिखी है, बोनाफाइड म्यूजिक बनाया है, या बोनाफाइड जो कॉपी किया है, या बोनाफाइड म्यूजिक या बोनाफाइड स्टोरी लिखी है, उनसे, जैसे अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, वो कोई फिल्म बना रहा है, तो फिल्म बनाने के लिए जो स्टोरी यूज करा है, वो स्टोरी का कॉपीराइट कराना चाहता है, तो वो पहले जो जिन्होंने स्टोरी बनाई है उससे वो राइट लिखवा के लेंगे, और तभी उसका वो उसके नाम पे वो ग्रांट होगा। क्योंकि स्टोरी जिसने लिखी है या डायलॉग्स लिखे हैं इतनी मेहनत करके, और फिल्म वाला डायरेक्ट बता दे तो भी उसका नुकसान है। अगर किसी ने जैसे ए.आर. रहमान और कोई किसी ने म्यूजिक बनाई है, बहुत मेहनत करके धुन डेवलप की है, तो उस धुन की आप कॉपी नहीं कर सकते। अभी देखते हो आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो तो बीच में म्यूट हो जाता है, आप वो म्यूजिक को बचा नहीं सकते। जब मैं अहमदाबाद ब्रांच का चेयरमैन था तो हमने विकास सा का प्रोग्राम किया था, और हम कल्चरल इवेंट ही, तो वहां पे म्यूजिक बजा रहे, तो पुलिस आ गई और उन्होंने आके रख के म्यूजिक रुकवा दिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि जिस हॉल में हमारा म्यूजिक बन रहा था, या जो डिस्कोथेक में म्यूजिक बन रहा था, उसके राइट ने वो राइट नहीं लिया हुआ था म्यूजिक कंपनी से, उसको पेमेंट नहीं किया हुआ, तो वो हमको म्यूजिक बंद करना पड़ा। तो आपको प्रॉपर पेमेंट करने के बाद ही ये राइट देते हैं। मैं एक और उदाहरण दूं तो यूएस की फिल्म प्रोड्यूसर था, वो इंडिया आया, उसको इंडिया की कुछ म्यूजिक का ट्यून यूज करना था, तो यहाँ आया, पेमेंट किया, यहाँ से लीगल राइट लेके वहां जाके यूज किया। ऐसा ही नहीं कि बाजू वाले ने फिल्म बनाई और उसकी दूसरी कॉपी करना चालू कर दिया या पायरेटेड कर दिया। इस तरह से हम लोग नहीं तो किसी का कॉपी कर सकते हैं, न किसी का ऐसे चुरा सकते हैं। तो अपने को ये जो राइट्स है कॉपीराइट्स का, इसमें डायरी नंबर आपको मिल जाता है, आपको ओरिजिनल ऑथर का नाम लिखना है, एप्लीकेंट कौन है, ओरिजिनल ऑथर कौन है, उनसे एनओसी लिया या नहीं लिया, आपका ये फर्स्ट पब्लिश कब हुआ, अगर आपने स्टोरी लिखी तो पहली बार कब, पोइम्स लिखी तो पहली बार पोइम्स कब पब्लिश हुई। ये सब के लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर फाइल करना पड़ता है कॉपीराइट एप्लीकेशन में, और आप वो वहां से डायरी नंबर के हिसाब से आपके जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, और उसके बाद में आपको राइट बन के आ जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ग्रांट कर देगी। अब ये सब आपने किया, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी, लेकिन क्या आपने फी प्रॉपर चार्ज कर रहे हैं या नहीं? अगर आपने प्रॉपर फी चार्ज नहीं कर रहे तो ये सब करने के बावजूद भी हम क्या प्रोफेशनली कमा रहे हैं? कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये अपने लिए 5 मिनट का काम है, लेकिन क्लाइंट 5 मिनट में कर नहीं सकता। आपने पिकासो का नाम सुना होगा, वर्ल्ड का बहुत ही फेमस चित्रकार था। वो क्या करता था, अलग अलग पेंटिंग्स बनाता था और पेंटिंग का ऑक्शन करता था, अलग अलग डिफरेंट कंट्री में जाके, स्टेडियम में जाके पेंटिंग्स का ऑक्शन करता था, और उसके हुस्न के दीदार जो उसको पसंद करते थे उसके नाम के, तो वो लोग वहां जाते थे, ऑक्शन लगाते थे और लाखों करोड़ों रुपए देके वो पेंटिंग खरीदते थे। इन सब प्रोसेस में एक लेडीज भी पिकासो को फॉलो कर रही थी, और वो देखती थी कि इतनी सी एक पेंटिंग का लाखों रुपए, $1 मिलियन, $2 मिलियन इतनी कॉस्ट है, उसको समझ नहीं आया। वो घर जाती है, रात भर सोती नहीं है, वो पिकासो को जाके मिलती है और पिकासो को बोलती है, पिकासो मुझे भी पेंटिंग करना सिखा दो। तो मैं आपके जितना तो नहीं, लेकिन फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी की तरह मैं भी कमा के अच्छे से जी सकती हूँ। पिकासो ने बोला, मैडम ये इतना इजी नहीं है जो आप बोल रहे हो, वो ऐसा हो नहीं सकता, आप सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, टाइम के बिगड़ कुछ होना नहीं है, जो नेचुरल टाइम लगता है वो लगता है। लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, फॉलो अप कर रही थी। तो बोला, पिकासो को बोला, जब मैडम एक कागज और स्केच लेके आओ। पिकासो ने उस पर एक स्केच बना के दे दी और बोल कहा कि जा घर जाके कल सुबह उसको बेच देना, 1 मिलियन कॉस्ट उसकी आएगी। वो लेडीज को विश्वास ही नहीं होता कि जरा इस 5 मिनट में इसने जो बनाई है उसकी वैल्यू $1 मिलियन कैसे हो सकती है। घर जाती है, पूरी रात ये सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, न सो पाती है न जग पाती है। जब वो सुबह जाती है ऑक्शन में, तो पेंटिंग देख के लोग बोलते हैं इसकी तो $1 मिलियन, ये तो पिकासो ने बनाई है। उस लाइने और उस स्केच को देख के लोग पहचान गए ये किसने किया और कि क्या कॉस्ट है। सेम हमारा भी कॉस्ट ऐसा ही है। हमने स्लिप मतलब कितने साल बिगाड़े सीए, मतलब बिगाड़े तो नहीं बोल सकता, कितने साल इन्वेस्ट किए सीए बनने में, कितनी मेहनत की है, कितनी दिवाली छोड़ी है, कितनी नवरात्रि छोड़ी है।
अपने जो आज 2 मिनट में सॉल्यूशन ला सकते हैं वो कोई क्लाइंट कभी ला ही नहीं सकता, तो हम पैसा उसका चार्ज करते हैं, 2 मिनट का नहीं दे रहे हैं। उस 2 मिनट का परफॉर्म के लिए अगर आप स्टेज परफॉर्म में ओलंपिक आपने देखा होगा कि गोल्ड मेडल लेने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट का परफॉर्म के लिए 3-3, 4-4 साल की मेहनत थी, वो 3-3, 4-4 साल तक सोए नहीं थे। तो 10 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए हमारे पीछे 3-4 साल की मेहनत थी तो पढ़ाई की। तो मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि चार्ज प्रॉपरली, डोंट अंडर एस्टिमेट, अंडर वैल्यूड, क्योंकि अपने वर्ल्ड के सब सीए प्रॉपर चार्ज करते हैं, एक्सेप्ट अपने लोगों को प्रॉब्लम, हम लोग काफी कम चार्ज करते हैं, हमारी कॉस्ट भी नहीं निकलती। वी आर नॉट ए गुड सेल्समैन। हम अपनी सर्विस इंस्टीट्यूट तो मना ही करती है कि बेच नहीं सकते, लेकिन हम अपने कॉस्ट भी सही नहीं निकाल पा रहे। आपने इतने दिन दिए, इतने आवर्स दिए, इसके बीच में कॉस्टिंग, कितने सीए लोग कॉस्ट निकाल के उसको प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर कॉस्टिंग करिए, उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करिए, और आप करोगे तो क्लाइंट को भी लगेगा कि नहीं इसकी वैल्यू। यूके और यूएसए में जाओ आप, तो एक एडवोकेट और लॉयर की बहुत इंपॉर्टेंस है। वहां पे किसी को पोसाया नहीं, झगड़ा करना जाएंगे तो लॉयर की बहुत फी लगेगी। वहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यूएस में $300-400 कॉस्ट है, और यहाँ अभी पिछले 10 साल से मेरे हिसाब 2 से 3 हजार कभी कॉस्ट बढ़ी नहीं। So you charge properly. That is my humble request. With this, I end of my session. I keep 10 minutes for question answer. आपको अगर कुछ है तो I'm ready to answer any question. साबू सर। Sir, question. बहुत बढ़िया सर, मजा आया। बढ़िया था। Can you read the question, sir? Hello. Are there any questions? Hello. आ रही आवाज, आ रही है नीलेश भाई, आ रही है। Okay. बिल्कुल आ रही है, किसी को अगर क्वेश्चन है। Okay. सिर्फ क्वेश्चन ऐसा है कि law firms have been in practice of IPR. Now, what are the major challenges that may be faced by CA? Apart from Very good question. Very good question. what are the area to give? Absolutely correct. I will answer. Trademark Rule 150 of 2002. अगर आपके पास खोल लो तो खोल सकते हो। तो ट्रेडमार्क रूल 2002 रूल 150 where who can do the direct practice? Any graduate who passed the examination, advocate and company secretary. Mind well, company secretary is there. Company secretary, advocate and those who pass the exam can directly do the practice of as a agent. एज एजेंट मैंने अभी तक जो बताया वो आपको क्लाइंट के बीएफ पे काम करने का है। जो भी क्लाइंट के डीएससी जैसे इनकम टैक्स में करते हैं, जीएसटी में करते हैं, सब कुछ क्लाइंट के बीएफ पे करना। अगर आपको एजेंट का काम करना है तो कंपनी सेक्रेटरी की इंस्टीट्यूट उनको अलाउ करती है और डायरेक्ट है भी। हम क्यों बस मिस करके मालूम नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट किया था। जब वो कर सकते तो हमारे से क्या नाराजगी है। रूल 151 ऑफ द ट्रेडमार्क रूल 2002 says the chartered accountant who is an unsound mind or held guilty by the high court cannot do the practice. So we are in the negative list. मतलब हम अगर अनसाउंड माइंड के और हाई कोर्ट ने गिल्टी किया तो नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पॉजिटिव लिस्ट में अपना नाम डलवा नहीं पाए और ऊपर जाएंगे तो करेंगे और डलवाएंगे उस नाम को। डलवा जब कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब कंपनी सेक्रेटरी जीएसटी ऑडिट के लिए ट्राई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते नहीं, कंपनी सेक्रेटरी ट्राई कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट के लिए ट्राई कर सकते हैं। हम ये क्यों फील्ड को अनटच रख रहे हैं मालूम नहीं है। मैंने अप्रोच अथॉरिटी के साथ बात भी करी थी, स्टूडेंट में भी रेज किया था। और देखो ऊपर क्या होता है, आगे जाएंगे तो इसको करेंगे भी सही, ताकि सब भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो नया कम से कम ऐड हो गए, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को समझा सकते हैं, सेक्रेटरी कर सकते हैं। तो वी बेटर नो क्लाइंट्स, बिजनेस करने वाले को हम अच्छे से जानते हैं कि क्या कर सकता है वो। अनसाउंड माइंड के होते तो सर सीए नहीं बनते, ये नहीं करते तो क्यों होता है मालूम नहीं। अमेंडमेंट जब आया ना 2 का, तो उन्होंने ऊपर तो डाला नहीं, नीचे वाले की कॉपी मार दी। ये आप दोनों खोल के सुना, रूल 151 ना आराम से। ट्रेडमार्क रूल 2002 में 150 और 151 ये आपको क्लियर हो जाएगा। Are there any questions? जी TDS का है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसके मेंबर को फ्री कर ही दिया ना। अगर हम आप काम दे नहीं सकते तो दूसरा काम तो करो। The question ऐसा आ रहा है कि considering this rule, can we still provide the services? सर्विस प्रोवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? हम क्या कर रहे हैं? आप इनकम भरते इलीगल है क्या? उस क्लाइंट के डीएससी क्लाइंट के बीएफ पे काम करना खोटा है क्या? इलीगल सर्विस थोड़ी है। So agent नहीं बन सकते हम। मैं 25 साल से कर रहा हूँ, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। Correct. So we cannot be an agent, but we can provide services. एजेंट के लिए काम कर एज एजेंट आपको रजिस्टर कराना है वहां पे, Correct. बराबर।
के बिहाफ में तो आप सब कुछ काम कर सकते हो विच इज लीगली परमिटेड। लीगली परमिटेड काम कंसल्टिंग तो कर ही सकते हैं, कौन सा कंसल्टिंग काम नहीं कर सकते। Good. Thank you, sir. जब बिग फोर, ऑल दिस बिग फोर कंसल्टिंग कंपनीज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ईवाई, डेलोइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी सबका रजिस्टर्ड है और सब करते हैं, Mhm. फिर भी एडवर्टाइज भी करते हैं लेकिन रोकता नहीं है उनको कोई। हाँ नहीं रोक रहा ना, कहाँ रोक रहे ना, सब कुछ होने के बावजूद भी कहाँ रोक रहे हैं। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल लीगल सर्विसेज है, 100% लीगल सर्विसेज है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। आपको अपने क्लाइंट का इनकम टैक्स के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको हाईकोर्ट में जाके खड़ा होना है तो बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है। सेम ऐसा ही है, अगर आपको वहां जाके रिप्रेजेंट करना है तो आपको एजेंट की जरूरत है, वरना आप एजेंट को अपडेट सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, नहीं जी क्या बोलिए। राणा जी कुछ Are there any other questions, sir? इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर दे देता हूँ 9825020844, कभी भी कॉल कर सकते हैं फ्री 24/7। मैं इसमें टाइप करके भेज दूं, आप दे देना नंबर किसी को। कभी कोई भी पुरुषोत्तम जी आपका नंबर ऑलरेडी इसका यूट्यूब वीडियो बनेगा उसमें भी आ जाएगा। हाँ बस हाँ यस, तो सर हम तो तैयार ही है सर, किसी को भी प्रॉब्लम। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे तरह 8-10 लोग और प्रैक्टिस चालू करें तो अच्छा रहेगा, ग्रुप बनेगा। यस, मार्केट बहुत बड़ा है, कोई किसी अपने सी में क्या है, अपने वही सिखाते हैं जो आर्टिकल को सिखाते हैं, वो भी तो वही प्रैक्टिस करता है। मैं सिखाऊंगा तो अच्छा है ना, दूसरे 4 प्रैक्टिस करें। यस यस, अच्छा सजेशन है। खाना मैं खोलता हूँ आपका ही ब्रांच ऑफिस। नीलेश भाई क्वेश्चन पूछ लो, और कुछ है क्या? बस सर एक तो one second. सिक्स वेबसाइट के लिए पूछा था, which is the website for Copyright Act 1957? कॉपीराइट इंडिया, एक मिनट, वेबसाइट का नाम लेना, कॉपीराइट की वेबसाइट का नाम लेना, एक मिनट ना दे देते हैं सुरेश। उसका ipindia.nic.in, See ना, ipindia.nic.in। I think बाकी तो कवर हो चुके हैं। Your questions? copyright.gov.in, copyright.gov.in। Correct sir? अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है, anybody if you want to ask question to Khandelwal ji, you can raise your hand or you can unmute yourself and raise question. Yes. One of the questions just came, sir. जी. Is there any association of IPA practicing professionals? Yes, अहमदाबाद में, इंडिया में बहुत जने Okay. बहुत है, और वो के प्रोग्राम करते रहते हैं। अहमदाबाद में तो बहुत एक्टिव है, जतीन और ये सब बहुत एक्टिव है। नहीं, उनका क्वेश्चन था एसोसिएशन भी बनाया है क्या? वही तो है ना, एसोसिएशन एक्टिव ही है, बना हुआ ही है। अच्छा है ना, एसोसिएशन है, इतना बड़ा फील्ड है तो एसोसिएशन, बार काउंसिल है तो आईपीआर एसोसिएशन तो है ना सर, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। ये में अहमदाबाद में है इसका एसोसिएशन, उसका क्लासेस भी चलाते हैं एमए में। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन है, वहां पे इसकी क्लासेस सब कुछ चलती है। जी एक सवाल मेरे तरफ से है कि आप कोई पीपीटी भी बना रखी है क्या? सर बना ही नहीं है, बनाने वाला हूँ, बना ही नहीं है सर, मैं ऐसे ही बोल रहा था मेरे पास। नहीं मुझे मालूम है, वो तो दिख रहा है। हाँ नहीं, पीपीटी बनाइए ना सर, पीपीटी शेयर कीजिए ना हमारे साथ। पक्का सर, बना के शेयर कर दूंगा 100%, 2 दिन कर दूंगा सर, बिल्कुल। If there is no question left, then I can request Nilesh bhai to formally. शिवानी एडुकिया ने पूछा है अबाउट द ब्रांड मैनेजमेंट सर्विस, which part of fasting, which was a fasting team, can you give the little information? फास्टिंग ट्रेडमार्क आपको कराना है तो आपको डबल फी भरने की है, डबल फी भर के आप फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं, लेकिन खाली गवर्नमेंट 4 महीने का पीरियड है वो तो सेम रहेगा।
सेम रहेगा। एडवर्टाइजमेंट पीरियड सेम रहेगा। Hello. हाँ हाँ पूछिए। Hello. हाँ जी, Aji sir, there was one suggestion, हाँ, especially to Purushottam ji, यस because we are very less. Few chartered accountants are in this practicing in जी this सर, area, and I think it's an excellent field to be explored. यस Why सर। can't Purushottam ji, you take a lead and have at least start in a WhatsApp group in which all intending say persons, those who can be a member of Sure, that. I will Right. start today. Yeah, you can start. You can add me. 100% I will give you the. I'll start that group. I'll Yes, add you add me. and Yes. thereafter you And become the admin. include sir. other also. तो क्या है Include कि other this also. kind of things हाँ ये करेंगे तो हम I will लोग answer नया all लोगों queries. में आना I will answer चाहते हैं। all queries. All queries. No problem. Good suggestion. Very good. So that group will be remain say forever. बराबर sir? Forever, Yeah. yes. Thank you. very आप much. व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, मेरे को ऐड कर Yeah. लीजिए, पुरुषोत्तम जी को ऐड कर लीजिए, then we will I will make it answer popular. all questions. All questions. Sure sir. Don't worry about silly Sure, questions. sir. I will Let's- answer all questions because फिर Yeah. नया है तो हाँ कोई problem नहीं है। हेलो सर। ठीक है फिर मैं हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आई एम विजेंद्र तिवारी। यस बोलिए तिवारी जी, बोलिए सर। हाँ सर, वो ब्रांडिंग वैल्यूएशन का आप बताने वाले थे कुछ उसके बारे में। वो ब्रांडिंग वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द एरिया ब्रांडिंग वैल्यूएशन के लिए? ब्रांड वैल्यूएशन में अगर किसी को ब्रांड को सेल करना है या परचेज सेल करना है, दे हैव टू कम टू कंक्लूजन ना व्हाट इज द बेस्ट प्राइस। नहीं तो प्राइस कौन सा बेस्ट पे होगा? प्राइस कोस्ट करने के लिए इंडस्ट्री से बेटर ऑप्शन, वो अपने से ज्यादा जानते हैं, अपने को तो कैलकुलेशन करके देने का है। हाँ नहीं, मैं तो ये जैसे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड है, गुडविल मेथड है, आपका फ्यूचर टर्नओवर क्या रहेगा, उसमें से आप क्या कमा रहे हैं, कैलकुलेट करके आपको देने का उनको। वो तो वो सर वो खरीदने वाले को भी कॉस्ट मालूम होता है, आपको भी होता है, लेकिन आपको जेन्युइनली उसको अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं सर, उसके लिए ऐसा कुछ ऐसा डिफाइंड ये नहीं है। डिपेंड नहीं है। जैसे आपको सुनो किसी को अगर ट्रेडमार्क बेचना है, वो आपके पास अप्रोच करना है कि मेरे ब्रांड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तब आप उसको वैल्यूएशन करके देते हैं। जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग नॉर्म्स है, जो अपने वैल्यूएशंस में पढ़ाए जाते हैं, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड में, उस हिसाब से दे सकते हैं। वो तो एक्ट कुछ बोलता नहीं है इसके बारे में। दैट इज एन कमर्शियल डील। सर अगर कोई ट्रेडमार्क परचेस किए तो उसको इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में लेके आ सकते हैं क्या बाद में? अगर उसका कुछ मार्केट में वैल्यू नहीं है तो हो सकता है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर उसका बेस क्या होगा इंपेयरमेंट के लिए? मतलब सपोज अगर मुझे उसको इंपेयरमेंट करना है, मैंने ट्रेडमार्क परचेस कर लिया, जैसे मैं एक कंपनी का ऑडिट करा था, अभी तो मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। मैं जब प्रैक्टिस में था उस समय में एक एलबी कुरियर कंपनी है, उसका मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो एलबी कंपनी कुरियर बंद हो गई, लेकिन एलबी ब्रांड ट्रेडमार्क उन्होंने सेल किया। तो उसको इंपेयर करने की क्या जरूरत है? उसको आगे की फी मत भरो, वैसे निकल जाएगा ना। सरकार छोड़ आपको, इतना झंझट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, लेकिन जो परचेस करने के लिए जो पे किया है, तो वो तो यूज कॉस्ट अभी वो बैंक वो तो खर्चे में डाल सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो ना। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। I think sir, there is no any other questions. जी सर। तो सर आपने एक अच्छी बात ये बोली कि you should think out of box. यस देखो आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो काफी ग्रो करेंगे। सर, वो तो जरूरत पड़ेगी, सोचना पड़ेगा ना। अभी तो सोचने के लिए मजबूर है। अब अभी तो साइड चल नहीं रही, अभी कब चलेगी जब रात खराब होने की बात है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जिस दिन होगा, जिस दिन मार्च आ जाएगा, नेक्स्ट फाइनलाइजेशन में हो नहीं सकता, फिर हमारी क्या दशा होगी। और उसके सामने हम चार्ज भी नहीं कर रहे ना नीलेश भाई, प्रॉपर क्या पैसा ले अच्छे पैसा करता नहीं, तकलीफ એ છે ને યાર। આઉટ ઓફ બોક્સ એટલે મેડિકલ ફી પૂછતા ત્યારે ઇન્ટરની ફાઇલિંગ જ ફી હતી, ફેસલેસ એસેસમેન્ટ થઈ ગયું, પણ ચાર્જ કશું નથી કરતા। So we should think of that also. Anybody out of box વિચારવું પડશે। यस ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव की बात करो। ओवरऑल पर्सपेक्टिव करेक्ट। कमलेश भाई, आपके कुछ कमेंट्स? जो भाई ने हमारे साथ काम किया हुआ ना इधर मुंबई में। सर मैं तो कोई काम रहा तो आपको सीधा बता देता हूँ सर। हैं? मैं तो कोई काम रहेगा सीधा आपको बता दूँ ना डायरेक्ट से। तो बताते बेटर टू गेट इट डन थ्रू अदर प्रोफेशनल फील्ड ब्रदर्स नो। सर अगर आईपीआर का कुछ आया तो आपका नाम और आपका फेस रिफ्लेक्ट होगा दिमाग में। अरे वो सर, वो आप मेरे को बता, सीखो, आप खुद करो। मैं आई विल गाइड यू। डेमो चाहिए तो डेमो दे दूंगा ऑफिस में, किसी को चाहिए तो इंडिविजुअल समझा के डेमो दे दूंगा। मेरे ऑफिस में से जूम पे डेमो दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसको बोलना है कि 2-4 दिन मिलके देखना है, मेरा जो देख रहे हैं वो डेमो आपको करके बता देंगे कैसे करने का। गुड सर।
नीलेश पुरुषोत्तम भाई बहुत हेल्पफुल है, कभी भी आप मदद ले सकते हो, कोई डाउट ही नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक क्वेश्चन और एक लास्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोगो, टैगलाइन, वर्ड मार्क एंड आर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट? देखो, कोई भी का नाम रजिस्टर हो सकता है, लोगो रजिस्टर हो सकता है, टैगलाइन रजिस्टर हो सकती है, तीनों ट्रेडमार्क में आते हैं, तीनों एक साथ भी हो सकते हैं एक ही फी में। तो नीचे नाम लगा दो, नीचे टैगलाइन लगा दो, अलग अलग करनी है, अलग अलग फी लेनी है, अलग अलग कर दो, बाकी तो एक में भी हो सकता है। अगर एक ही टाइम पे अगर आपने लोगो, नाम और टैगलाइन डेवलप किया है तो सब हो जाएगा। पहले मालूम से बात करना, So that can be done. Yes. क्यों करेंगे, ठीक है? उसको वैसा बात कर लो ना, मैं हमारे ऑफिस से हुआ है पूरा। Nilesh bhai, if there is no question left, then I request you to present formal vote of thanks. Nilesh bhai, over to you. नहीं हो 15 जुलाई का। Yes, on behalf of the Thane branch of WIRC and all its office bearer, I would like to give hearty word of thanks to our today's distinguished speaker, CA Purushottam Khandelwal sir, for enlightening us with his knowledge, excellent examples, and making this webinar very useful, interesting, and meaningful. Today's webinar was full of knowledge and interesting. Thank you very much, sir. Thank you once again, CA Khandelwal sir. Thank you very much. Yeah, thank you, Purushottam ji, once again from my Thank side you sir also. for giving an opportunity to share my thoughts with member. नहीं नहीं, अच्छा है, ये टॉपिक पे कभी कोई सेमिनार हुआ नहीं था। आई थिंक थाने ब्रांच प्लेटफॉर्म पे आप पहली बार बोल रहे हो। पहली बार बोल रहा हूँ सर, पहली बार। हाँ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया रहा आपका सेमिनार और सभी पार्टिसिपेंट को भी धन्यवाद। एंड बाय दिस आई नाउ फॉर्मली डिक्लेयर एंड ऑफ टुडेस सेशन। कर दो ना जरा, तो कल का अनाउंस कर दो ना। हाँ, tomorrow we have flag hosting ceremony at assembly time is 7:45 and 8 AM will be the flag hosting in Thane branch near Bedekar Hospital, Nopal. सर Thank you. in advance. Yes, thank you, thank you. चेतन भाई, आपको और कुछ बोलना है? चेतन भाई, अरे बहुत बढ़िया हो गया सेशन, बढ़िया हो गया ना? अहमदाबाद के लोग को कोई पहुंच नहीं सकता है। ना ना सर, वो नहीं तो सर रूपा रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रूपा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद करो।